Okay, good morning, friends. I welcome you all to CA Intermediate. The subject called as, in short, it is called SMS language CMA. Full form, Cost and Management Accounting. And to this batch, which we are recording now, we have given it a name version 3 batch. Because we had earlier recording, so to avoid the confusion, we keep giving the new name. Like in softwares, you have new version, so we are giving it a name version 3 batch, right? On the contrary, in your notes also, you will find here version 3 is printed. This batch will be in Hindi plus English. The reason for saying this is my earlier version 2 was in complete English, 100% English for some of the students in India who don't understand Hindi, especially the southern part of the country. So there was a request that there are a lot of faculties who teach in mixture language, but there are very few who teach fully in English. So on that request, I had recorded the earlier batch, that is version 2 batch was completely in English. But then there was a request from northern part of the country. Sir, what is this? Little bit Hindi ho jaye. So this batch, I am doing it in Hindi plus English mixture, 50-50 mixture. Plus one more thing is, in this batch what I have done, recently institute published a upgraded module. This is a recent upgraded module. It is technically called as October 2020 edition of institute's module. You may be aware, may not be aware. It is October 2020 edition of ICAI module. This actually you might not have received it yet, therefore you don't know. Now it was only an updation in the module, there is no change in the syllabus. Generally the syllabus of cost and management accounting doesn't change. It is not a subject like taxation where there are amendments every year. So this subject that way is a static subject, it doesn't change much. But there are new questions or some new presentation, something new. So and previous errors are also been corrected by the institute, lot of errors are still left, which I will tell you. So they have come out with the new upgraded module. So what I have done in this batch notes are updated till this module. So I have gone through the entire module, latest module of the institute, and I have already updated our notes. So these are fully updated till latest module, which you are yet going to get from the institute. And that reminded me, when I was going through, and as I had a time, this time we had a lot of time, free time. So I went page by page, word by word, and I found so many errors. And all these errors I have communicated to institute also. Some logical errors, some printing errors, conceptual errors, sometimes some clashes between concept written here in this chapter and in this chapter. This is clashing, same institute's module, in one chapter different written, another chapter different reference is given. So I made a list of it. There are around 72 such errors which I have noticed. How many? Around 72, 73 approximately, which I remember now. And I made a compilation. I did lot of correspondence with the institute also. They don't listen that fast. That is my experience. Even they don't respond to the members' email. Forget about students' email. They don't respond even to the members' email. And I made a compilation of errors, and I have sent it to the board of studies, right? I had a talk with the chairman board of studies and mailed it to all their departments to get it corrected in next whenever the module will be released. So they have to do lot of corrections. Plus one more thing I did. एक काम मैंने स्टूडेंट्स के लिए किया, इतनी मेहनत से इतना बनाया, पूरा चैप्टर वाइज पेज वाइज बनाया, कहाँ क्या गलती है और क्या गलती इंस्टीट्यूट का क्या कहना है, मेरा क्या कहना है, सब लिखा है उसमें. इंस्टीट्यूट्स व्यू, माय व्यू. तो मैंने जब इतनी मेहनत की है तो स्टूडेंट्स को भी दे दो ये. सो व्हाट आई डिड ऑन माय वेबसाइट, first of all let me tell you my website address is printed actually on every page of your notes. Every page, right hand side top corner, you will find the website address, but let me, and on the front page also. So our own website is
It is in my name itself, CA Rakesh Agrawal .in, not .com, .in. This is the website. So whenever you visit that website, one very important section or tab in this website, which is more important for you, is a student corner tab. Student corner. I think you call it as tab only, no? Different tabs on the website, right? What you know technology better. So this is the section, student corner section on our website, in which lot of important things you will find which are useful to you, including this compilation of errors in the module. तो पूरी लिस्ट जो मैंने इंस्टीट्यूट को भेजी है वही लिस्ट मैंने वेबसाइट पे भी डाल दी है. ये कब काम में आएगी आपको, कैसे काम में आएगी? Sometimes if you happen to go through the institute's module, तो क्या होगा आपके ध्यान में का सर ने तो ऐसा पढ़ाया, इधर तो ऐसा लिखा है. Are you getting it? तो जरा देख लेना ना पहले, ये लिस्ट डाउनलोड कर लेना. इट इज डाउनलोडेबल पीडीएफ फाइल एंड यू कैन सेव इट समवेयर. सो विल कम टू नो कि उसमें क्या क्या गलतियां हैं. तो मैं गलत तो नहीं पढ़ाऊंगा. सो वेर एवर दो देर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आई टेल यू कि दिस इज माई व्यू, दिस इज institute's view, and it has been listed and available for you also for public viewing to all the students under student corner. वैसे भी student corner में और क्या क्या रहेगा, I'll let you know, right, just in few minutes. I think I'll quickly introduce myself first, then I'll go to the subject, your subject, and we'll start today itself with chapter 1 as far as possible. A quick introduction about me. First of all, my name is Rakesh Agrawal, right, CA Rakesh Agrawal. I cleared my graduation in 1989, that is BCom, from Nes Wadia College of Commerce, Pune. And I happened to be the gold medalist from the University of Pune in the special subject of cost and management accounting. That was my specialization. In 1990, I cleared my ICWA, which is nowadays called as ICMA, cost and management accountant. Earlier it was called cost and works accountant. I cleared this examination in the first attempt in 1990, and based on this qualification, I started teaching in 1991. Based on ICWA qualification, I started teaching at Pune chapter of cost accountants, the local body. I got the opportunity to teach the same subject, that is costing. So since 91, I am into teaching till date. So it's more than now 30 years, same subject. So if somebody takes out a bottle of blood from me, so what will flow out? Costing. So since 91, I am into teaching. In 1992 exam, I cleared my CA final with all India rank. Now you will notice that there is a gap between graduation and CA. Reason? In our days when I did CA, this was the only route. Only route was after graduation. There was no route after 12th. You may not be aware of this history, but in those days the only route to do the CA was do the graduation first and then enter into CA. And now in last few years, institute has opened a new route after 12th, and most of you are coming through 12th, that is through foundation route, foundation and CPT route, so that you become chartered accountant at an early age, and that's a good thing, right? So we had no option, but ICWA course was allowed after 12th, even in those days, through an entrance exam. So ICWA I could do, first I had to appear for entrance and then remaining. So ICWA I could do little early, but CA I had to do after graduation only. And due to the mistake of institute, my name was written in the All India merit list. That is surely a mistake of Institute of Chartered Accountants. No credit goes to me, right? Anyway, this is in brief about me, and since a long time now I am into teaching. If you want to know more about me, it's already been printed on the backside page of index. This is the index page. Just on the back side, little more details are written, including my email address. That email address is also important, though it is printed here, I am just writing it once. Because future communication, even after this batch gets over, and if you have later on difficulties before your exam while doing the revision, you can always put it on my email, right?
because we don't deal with the difficulties on phone call. You might be in a different mood and different place. We might be in the classroom, in the meeting, might be driving, might be eating. Nobody knows. And we have to respond to your query after going through what is exactly your query. We have to refer the literature, what exactly problem you are facing, and we have to give you the proper reply. तो चलते फिरते वो काम नहीं होता है. So about me it is written backside of the index page, plus the email is ngp.rakesh@gmail.com. So future communication after the batch gets over will be here, including difficulty solving. And when you are in the classroom, the difficulties you can raise here itself. In the classroom you can ask me the difficulty if it is related to the topic which I am discussing. If it is related to something else, then you can contact me after the lecture, immediately after the lecture. And after the batch gets over, this is the way, right? Email. Now, the moment you take admission, the staff will hand over you the set of these notes, classroom notes. It's a set of 4 volumes, volume 1, 2, 3, 4. These are black and white spiral binded notes, right? Out of which I am carrying volume 1 for teaching today. Volume 1 contains chapter 1 to 6, volume 1. Volume 2 contains chapter 7 to 11. Volume 3 contains chapter 12 to 15. अब ये पर्पस क्यों है इसको छोटे छोटे वॉल्यूम्स लिए किया, सो दैट यू डोंट हैव टू कैरी अ बिगर वन. लोड कितना कैरी करेंगे ना, आप इतने सब्जेक्ट की बैग लेके घूमेंगे, तो अब इसको मैं कंबाइन कर देता तो कितना बड़ा वॉल्यूम बनता है, और ये रोज कैरी करना पड़ता. तो मैंने आपका वर्कलोड क्या किया, डिवाइड कर दिया. पहले ये कैरी करना है वॉल्यूम 1, छोटा बना दिया इसको, ये खत्म हो जाए तो 2, 3. ये 3 वॉल्यूम्स हमारे क्लासरूम के काम के हैं. दिस वन इज प्रैक्टिस बुक, वॉल्यूम 4, तो ये आपको क्लास में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिस प्रैक्टिस वॉल्यूम 4, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, सभी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं. ऑल 4 वॉल्यूम्स, इन दोस फर्स्ट 3 वॉल्यूम्स, those different chapters which are covered, in this theory is already printed which will be explained in the classroom. So we will be saving your writing time. जो किसी जमाने में स्कूल कॉलेज में डिक्टेशन देते थे और लिखते थे, आपको उसकी जरूरत नहीं है. theory is already printed, we will be explaining. Unsolved questions are printed. Questions are printed. Answer we will develop here with your help, naturally. I hope you are well equipped, huh? Notebook, pen, pencil, everything. So answer will develop here. Then there are homework questions along with answers printed in volume 1 to 3. Chapter wise homework questions along with answers. So I will be giving you some homeworks also, similar questions which you are supposed to solve at home. अब घर पे सॉल्व करते समय आंसर प्रिंटेड है, सो यू कैन डू इट इन रफ ऑल्सो, यानी कैलकुलेटर पे, रफ पेपर पे, लेकिन सॉल्व इंडिपेंडेंटली करना है, क्वेश्चन और आंसर नहीं देखना है होमवर्क करते समय. इफ यू वांट टू गेट 100% बेनिफिट, लेकिन सॉल्व करना है, उतना फॉर्मेटिंग वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है. सॉल्व करके एक बार चेक करना है आंसर से कि करेक्ट है या नहीं, आर यू गोइंग इन अ करेक्ट डायरेक्शन. 99% आप करेक्ट सॉल्व करेंगे ही और आपके आंसर मैच होंगे. नहीं हुए तो एक बार आंसर से चेक कर लेना कि आपकी गलती कहाँ है. और बहुत माइनर चांस होगा कि प्रिंटेड आंसर गलत है, माइनर चांस, वो हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे. मैं नेक्स्ट डे आपसे पूछूंगा कि कल के होमवर्क में कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो बताओ, एंड देन विल बी डिस्कसिंग इट इन द क्लासरूम, राइट. आर यू गेटिंग इट. तो कभी हो सकता है वेरी माइनर चांस कि उसमें प्रिंटेड आंसर में डिफिकल्टी हो या आंसर करेक्ट हो, आपको नहीं समझा हो, तो यू कैन आस्क मी इन द क्लासरूम. तो उसमें होमवर्क क्वेश्चंस है, प्लस पास्ट एग्जामिनेशन, ओल्ड सिलेबस जो कॉस्टिंग का था, कॉस्टिंग के सिलेबस में बहुत चेंज नहीं होता है, तो ओल्ड सिलेबस की जो एग्जाम्स हुई थी उसके पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करके विद द करंट सिलेबस, उसके आंसर भी मैंने उसमें प्रिंट कर दिए, वो भी उसमें से भी मैं आपको होमवर्क दूंगा. ये जितना मैंने बताया आपको, थियरी, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस जो हम यहां सॉल्व करेंगे, होमवर्क के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, पास्ट एग्जाम ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चंस, मॉडिफाइड क्वेश्चंस फॉर न्यू सिलेबस विथ आंसर्स, ये सब इसके अंदर है. ठीक, ये एक एक करके हम क्लास में इतना इतना पढ़ना है, इतना प्रिंट तो दे दिया, इतना लिखने का काम
इतना बचा लिया, इसके बाद बहुत सारा लिखना है। आपकी 200 पेजेस की 3 नोटबुक कम से कम लगेगी, 3 ऑफ 200 पेजेस फुल स्केप नोटबुक कम से कम। क्यों वो भी बता देता हूं। ऑलमोस्ट एक नोटबुक इसमें चल जाएगी वॉल्यूम 1 में, एक नोटबुक वॉल्यूम 2 में और एक नोटबुक वॉल्यूम 3 के आंसर लिखने में, तो 3 नोटबुक तो ऐसे भी लगने वाली है आपकी। फोर्थ इज प्रैक्टिस बुक। ये बहुत कुछ सोच समझ के डिजाइन की है मैंने। इसमें आपकी टेस्ट है, जो हम कुछ चैप्टर खत्म होने के बाद एक टेस्ट लेंगे, तो मैं आपको बोलूंगा वो टेस्ट कब लेना है। हम टेस्ट के लिए फिर संडे बुलाते थे लोगों को, फिर लोग आने में थोड़ा सा नखरे करते थे, फिर वो टेस्ट का डिस्कशन के लिए और एक दिन बुलाते थे, बाप रे फिर तो और भी नखरे करते थे, और टाइम बहुत कम है पढ़ाने के लिए, कम पड़ता है हमको। तो हमने अभी एक काम किया, और स्टूडेंट्स आते भी नहीं थे टेस्ट को, टू बी वेरी फ्रैंक, हार्डली 5-10%। अब मैंने आपको सिर्फ बोलूंगा कि 1 to 4 चैप्टर हो गए तो मैं बोलूंगा कि टेस्ट 1 आपने देना है। सो यू हैव टू नाउ डिसाइड विच डे इज कन्वीनियंट फॉर यू एट होम ओनली। मोस्टली विल बी संडे ओनली, क्योंकि रोज तो आपका शेड्यूल टाइट रहेगा। तो वो टेस्ट 1 उसकी सोल्यूशन 1, टेस्ट 2 उसका सोल्यूशन, टेस्ट 3 आपको इंडेक्स पे से ही पता चल जाएगा सर, इसी में लिखा है। तो ये सब भी इसी के अंदर प्रिंटेड है। टेस्ट अलग जगह है, सोल्यूशन अलग जगह, जानबूझ करके, so that you do it sincerely. That is my expectation that you do it under exam condition and then check it with the solution. मैंने टेस्ट के ऊपर कितने मार्क्स की टेस्ट है और कितने आवर्स अलाउड है। जैसे टेस्ट 1 is for 2 hours, तो आपने 2 hours का क्लॉक सेट करना है, you have to appear for the test and then check it with the solution. उसके solution में कोई प्रॉब्लम है, you can again talk to me, that is not a problem. फिर ये जो न्यू सिलेबस की एग्जाम है, आपकी इंटरमीडिएट का न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ था जुलाई 2017 में, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो एग्जाम हुई आपकी, तो फर्स्ट एग्जाम हुई मई 2018 में अंडर न्यू सिलेबस। तो मई 2018 एंड ऑनवर्ड्स के सजेस्टेड आंसर्स, एग्जाम क्वेश्चन एंड आंसर, वो भी मैंने यहाँ प्रिंट किए। Now actually speaking, these suggested answers are also available on institute's website, no? Yes, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पता है ना आपको, सभी को पता ही होगी, तो उस पर भी अवेलेबल है। बट आई रीडू इट आफ्टर कंसिडरिंग इंस्टीट्यूट्स आंसर, आई डेवलप माई आंसर, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन ICAI व्यू एंड माई व्यू। आई राइट अ नोट, आई डू इट इन माई स्टाइल। ये आंसर मैं जिस स्टाइल में पढ़ाता हूँ उस स्टाइल में मैंने प्रेजेंट किए, यानी मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किए, क्वेश्चन कॉपी किए, आंसर मैंने अपने डेवलप करके लिखे हैं, बट मोस्टली दे आर इन लाइन विद द ICAI। जहां पर मुझे उनकी एरर लगती है वहां मैंने नोट लिखी है। तो ये आंसर बाद में मैंने डेवलप करके इसमें प्रिंट कर दिया, तो वो भी इसके अंदर है सजेस्टेड आंसर। ये आपको काम में आएगा जब आप एग्जाम के पहले, जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया है एंड यू आर जस्ट इन द फाइनल प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम्स एंड यू वांट टू अपीयर फॉर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज पता है ना आपको, mock test. You want to test your own ability, how much you have understood, because your exam is due after a few days or few weeks. तब आप क्या कर सकते, ये जो क्वेश्चन पेपर है पास्ट एग्जाम के, वो 3 hours सेट करके क्लॉक में, you can first try on your own at home and as if you are giving the exam, और solution भी printed. You can check it with the solution, so your confidence, you will come to know where you stand, and if you are able to solve majority of them, naturally your confidence level will go up. If you are making errors, then confidence level will go down, but then don't allow the confidence level to go down. Find out the areas of improvement, that where I am going wrong, why I am going wrong, so which is the area for making improvement, and improve and then appear for the main exam. जैसे हम क्रिकेट में ट्रायल बॉल खेलते थे ना, याद होगा, तो ट्रायल बॉल है मॉक टेस्ट, तो पहले चैप्टर वाइज कुछ टेस्ट लेंगे हम और फिर फुल फ्लेज, लेकिन ये मैं आपको दे रहा हूँ, यानी सेल्फ डिसिप्लिन मोड पे दे रहा हूँ कि ये आपने करना है, तो ट्रायल सब इधर हो जाना चाहिए। ट्रायल शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ 6 months। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। जो लोग ये प्रैक्टिस मैनुअल कचरे में डाल देते कि अपने काम का नहीं है, क्योंकि ये मैं क्लास में तो ये पढ़ाने वाला नहीं, ये आपके लिए है डेवलप किया हुआ, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको हाथ ही नहीं लगाते। तो उनका पहला ट्रायल कब होता है, वो इंस्टीट्यूट की एग्जाम में, एंड दैट ट्रायल कॉस्ट यू 6 months। इट्स अ हेवी कॉस्ट। तो मेरा कहना है कि वो डोंट डू इट एट द कॉस्ट ऑफ 6 months, डू इट एट होम फर्स्ट। सो चैप्टर वाइज भी करेंगे और कंप्लीशन पे करेंगे, बट दिस इज फॉर यू और फॉर सेल्फ टेस्टिंग मोड, ठीक है। और क्लास में भी मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन आपसे बीच बीच में, ऐसा नहीं
यहाँ भी टेस्टिंग इनडायरेक्टली होने वाला है, राइट. सो दिस इज हाउ द स्कीम ऑफ 4 मॉड्यूल्स इज देयर विच विल बी गेटिंग ऑन एडमिशन. अब चलते हैं दोस्तों डायरेक्ट सब्जेक्ट पे. क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपको पता है ऐसा अज्यूम करूं? नहीं, it won't be correct to assume that. So I'll discuss a question paper pattern in brief. Your exam pattern. उसके पहले एक इंस्ट्रक्शन, एवरीवन शुड कैरी फुल स्केप नोटबुक. हाँ, वो हाफ साइज नहीं, वो कॉलेज में ले आते थे छोटी वाली, और वो सब सब्जेक्ट की लेक्चर अटेंड होने के बाद भी उसमें पेज बच जाते थे. एक पेन एक नोटबुक, और पूरा साल घूम लिए तो भी कुछ भी भरा नहीं उसमें. हाँ, ऐसा यहाँ नहीं होगा. तो फुल स्केप नोटबुक बेटा बता, जरा उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन देता हूँ. 2 छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस हैं. एक तो यू विल बी राइटिंग योर नेम एंड मोबाइल नंबर ऑन प्रिंटेड नोट्स ऑल्सो, जो हम देंगे क्लासरूम में. रीजन, वो सबकी एक जैसी है. इट विल गेट मिक्सड अप, इंटरचेंज. इसकी उसके पास चली गई, कभी भूल गए आप. सो इफ यू फॉरगेट इट समटाइम्स हियर, डोंट डू इट, बट इफ यू फॉरगेट इट वी शुड कम टू नो, सो वी कैन कॉल यू, अवर स्टाफ कैन कॉल यू एंड गिव इट बैक टू यू. तो प्रिंटेड नोट्स के ऊपर भी फर्स्ट पेज पे आपका नेम मोबाइल लिख देना, और इस नोटबुक पे भी लिख देना. कभी कभी लोग इसको भी भूल जाते हैं, शेल्फ में रहती है, भागने की जल्दी रहती है लेक्चर खत्म होने के बाद, ये यहीं रह जाती है. तो हमको पता चलेगा किस कौन सा नाम और कौन सा फोन नंबर है. और जनरली एवरीवन हैज गॉट इंडेक्स पेज प्रिंटेड. प्रिंटेड नहीं रहा तो बनानी पड़ेगी आपको इंडेक्स. हाँ, ये इंडेक्स पेज बहुत काम का है. आई विल टेल यू हाउ टू यूज दिस इंडेक्स पेज ऑफ नोटबुक. तो एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ जो आप सभी सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हो. और ऐसी फुल स्केप नोटबुक रखना. If there is not a printed index page, you will prepare index today. मैं इस पे बाद में आ रहा हूँ. हाँ, मैंने इसको थोड़ा सा डाइवर्ट किया. किसको? क्वेश्चन पेपर आता हूँ मैं. पहले वो डिस्कस कर लेता हूँ आपकी नोटबुक में क्या करना है. और आज का होमवर्क भी है उसमें थोड़ा सा. चैप्टर नंबर, टॉपिक और पेज नंबर, ऐसे 3 कॉलम उसमें आपको बना लेने पड़ेंगे. नहीं रहे तो ये सीरियल नंबर या चैप्टर नंबर जो भी समझो. सबसे पहले आज घर पे एक काम करना है कि आपके नोटबुक को पेज नंबरिंग करना है. मीन्स यू हैव टू गिव द नंबर्स, पेज नंबर्स टू नोटबुक. प्रिंटेड नोट्स पेजेस आर ऑलरेडी नंबर्ड. प्रिंटेड नोट्स में पेज नंबरिंग ऑलरेडी हमने कर दिया है. नोटबुक को नंबरिंग आपने करना है आज घर बैठ के. और जैसे हम जब चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे उसमें बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, ये वैसे थ्योरी है तो इसमें क्वेश्चन कम है, बट व्हेनेवर विल सॉल्व द क्वेश्चन, वो समझो आपका पेज 1 to 8 में आंसर है, तो आप यहाँ लिखेंगे पेज 1 to 8 जिसमें ये आंसर्स हैं. फिर चैप्टर 2 विल बी, ये सब अभी नहीं लिखना है आपने, जैसे जैसे कंप्लीट होगा वैसे लिखना है. एज द चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड, समझो मटेरियल कॉस्ट टॉपिक खत्म हुआ, उसके आंसर आपके नोटबुक में पेज 9 से हैं. सो सपोज पेज 9 अप टू 48 एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल है. तो चैप्टर खत्म होने के बाद आप यहाँ लिख देंगे. ऐसे चैप्टर 3 नेम, वो किस पेज पे आंसर है. इसका फायदा समझ में आ रहा है क्या होगा? एग्जाम के पहले ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको कौन से चैप्टर के आंसर किधर है. रीजन, क्वेश्चंस आर हियर इन प्रिंटेड नोट्स, आंसर्स आर इन नोटबुक. बिफोर द एग्जाम व्हेन यू सिट फॉर रिवीजन यू शुड बी एबल टू मूव फ्रॉम क्वेश्चन टू आंसर और आंसर टू क्वेश्चन. उसके लिए और एक काम करेंगे हम, क्रॉस रेफरेंस, वो भी बता देता हूं, because everyone has to do that. क्रॉस रेफरेंस यानी कैसा? आई हैव अ हैबिट व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन हियर. सपोज मैं कोई रैंडमली पेज उठाता हूं, कोई भी एक क्वेश्चन. सपोज आई हैव पिक्ड अप क्वेश्चन 30, जस्ट एग्जांपल सेक. आई एम सॉल्विंग सपोज क्वेश्चन 30 in the classroom. I have a habit of writing question 30 by 50. इसका मतलब we are solving question number 30 from page number 50. So when you will write the answer in the notebook, you will also write this reference question 30 by 50 and you will start writing the answer. तो आपको ये पता रहेगा कि ये जो आंसर है ये किस क्वेश्चन का है, 30, और वो क्वेश्चन किस पेज पे है नोट्स में, प्रिंटेड नोट्स में, पेज नंबर 50. अब एक क्रॉस रेफरेंस और करेंगे. मैंने नोटबुक को नंबर देने को बोला आपको. समझो आपके नोटबुक का पेज नंबर जो आप ऊपर लिखेंगे राइट हैंड कॉर्नर में, नोटबुक का पेज नंबर बोल रहा हूँ,
Suppose that page number of your notebook is 129. This is page number of your notebook. तो आपने क्या करने का, ये 129 पेज इधर लिख के रखने का क्वेश्चन के बाजू में, यानी क्वेश्चन के पास काय का रेफरेंस है कि आंसर कौन से पेज पे है. प्रिंटेड नोट्स में ये पेज नंबर लिखा जहां पर उसका आंसर है और इसीलिए नोटबुक को नंबरिंग देना है. तो क्वेश्चन के पास आंसर का रेफरेंस और आंसर के पास आंसर जहां लिखा हुआ ये रेफरेंस है किसका, क्वेश्चन का, क्रॉस रेफरेंस. आपने अकाउंट्स में वो जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग पढ़ा होगा ना. जर्नल में एक एलएफ का कॉलम रहता था, लेजर फोलियो, वहां से वो लेजर फोलियो लिखते थे जहां उसका पोस्टिंग हुआ है, वो कॉलम खाली रखते थे. हम कभी यूज नहीं किया लेजर फोलियो का अकाउंट्स में. एक्चुअली वो जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग जहां होती है उस पेज का नंबर है वो फोलियो, यानी पेज कि इसकी एंट्री उधर है, उधर पोस्टिंग हुई है लेजर अकाउंट में. तो हम अकाउंट्स के स्टूडेंट है तो ये हम खुद नहीं यूज कर सकते, इसका रेफरेंस उधर, उसका रेफरेंस इधर. So before the exam you can quickly in seconds you should move from question to answer or answer to question. और एक काम करना है फिर इसमें, फर्स्ट नोटबुक खत्म होने के बाद when you will start with second notebook. Suppose first notebook में you have ended last page is 180, तो second notebook में पेज 181 से चालू करना. कुछ समझा? नहीं तो क्या होगा, फिर से नंबर 1 से चालू किया तो पेज नंबर 34 नोटबुक में, तो फिर आपको क्या करना है, पेज नंबर 30 ऑफ नोटबुक 1, नोटबुक 2, नोटबुक 3. तो कॉन्सिक्वेंशियल कॉन्सिक्यूटिव नंबरिंग करना है, जहां से नोटबुक 1 का पेज नंबर खत्म हुआ उसके आगे पेज नोटबुक 2, उसके आगे नोटबुक 3. सो दैट नंबर शुड बी यूनिक, पेज नंबर शुड बी यूनिक. एंड आई थिंक दिस यू कैन डू फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, because almost all of the teachers will give you printed notes containing questions and answers will be in the notebook. तो एक connect होना चाहिए, it will save lot of time before the exam. That is very precious time before the exam, right? You can't waste your time in just searching through the pages कि इसका आंसर किधर है, इसका आंसर किधर है. तो आज का होमवर्क, पहली नोटबुक के पेज नंबरिंग खत्म कर देना, इंडेक्स बना के रेडी करना, फिलअप ऐसे एक एक चैप्टर खत्म होते जाए तो फिलअप कर देना. ओके, ये नोटबुक के लिए एक अच्छा सा कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए. अच्छा सा कैलकुलेटर यानी मैं किसी कंपनी की एडवर्टीजमेंट में नहीं कर रहा, मैं दिखाता ही नहीं, इतने इस साइज का ठीक है. बहुत छोटा कुछ वॉच में भी आता है, मोबाइल में भी कैलकुलेटर है, अपने काम का नहीं. मोबाइल तो निकालना ही नहीं बाहर. मोबाइल बाहर आया चलती क्लास में कि आप बाहर, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड. एक ही कंडीशन है मेरी, मोबाइल नहीं, रेगुलरिटी सिंसियरिटी, बस इतना आप दो, बाकी मैं समझ लूंगा. बाकी सब्जेक्ट आपको जिंदगी भर के लिए सिखा दूंगा मैं, ये मैं गारंटी लेता हूँ. यू विल लर्न दिस सब्जेक्ट फॉर योर लाइफ टाइम इफ यू लर्न विथ रेगुलरिटी एंड सिंसियरिटी, क्योंकि माय वे ऑफ टीचिंग इज कंसेप्चुअल एंड लॉजिकल. मैं आपको आपके एग्जाम के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा के यहाँ देने वाला, यानी इमेजिनिंग कि आपकी एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएंगे, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें से ये करके जाओ और 10 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा मुझे पॉसिबल हुआ नहीं और शायद ऐसा सीए एग्जाम में पॉसिबल होता भी नहीं. बट आई विल मेक यू केपेबल ऑफ सॉल्विंग एवरी क्वेश्चन instead of giving you the questions which are expected to appear in your exam. तो कंसेप्चुअल पढ़ने में टाइम लगता है दोस्तों, आपको भी टाइम देना पड़ेगा, मुझे भी देना पड़ेगा, बट टू अंडरस्टैंड A to Z ऑफ द सब्जेक्ट, दैट आई कैन प्रॉमिस. एनीवे, कैलकुलेटर में बोल रहा था, मोबाइल का नहीं, वॉच में छोटा मोटा रहता है नहीं, इतने इतने बड़े साइज के कैलकुलेटर आते हैं, पॉसिबल नहीं हैंडल करना. दिस इज अ गुड साइज है सबके पास, फाउंडेशन से ही होगा, राइट. ये रोज लाना ही पड़ेगा, ये बहुत काम की चीज है. और कैलकुलेशन आप लोग मुझे देंगे, यानी आई एम डिपेंडेंट ऑन यू एज फार एज कैलकुलेशन पार्ट इज कंसर्न. और किसी एक ने गलत दे दिया, कैलकुलेशन गलत किया यानी, तो दूसरा करेक्ट कर सकता है. बट आई ट्रस्ट यू पीपल फॉर कैलकुलेशन. मैं यहाँ सॉल्व करते रहूंगा आपकी मदद से. तो एक अच्छा सा कैलकुलेटर, पेन पेंसिल वो सब होना चाहिए. अब मैं इस पर आता हूँ इंपॉर्टेंट चीज पे. ये मैंने आपको नोटबुक का बताया. क्वेश्चन पेपर पैटर्न में all questions are of 20 marks. All questions of 20 marks each. उसमें से generally question 1 is compulsory. All questions are of 20 marks each. Don't worry, 20 marks का single question नहीं रहेगा, उसमें सब questions है. I'm coming to it. But all the questions carry total marks 20. आउट ऑफ विच जनरली फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी. ये अभी पैटर्न जो चल रहा है इंस्टीट्यूट का वो बता रहा हूँ. हाँ, फ्यूचर में इंस्टीट्यूट ने चेंज किया तो मुझे नहीं पता, बिकॉज प्रेडिक्टिंग इंस्टीट्यूट्स बिहेवियर इज डिफिकल्ट दैन प्रेडिक्टिंग द शेयर मार्केट.
It's more difficult than predicting the share market. So, but this is the pattern which institute is following. And out of question 2 to question 6, you have to solve any 4. 2 to 6 means 5 questions. Out of 5, you have to solve any 4. Any 4. So it's good choice. Naturally, one question we can skip, and that will be that question which is most difficult for us or lengthy, which you find difficult, so that you can skip. Now, generally question 1 contains 4 parts, A, B, C, D of 5 marks each. There are 4 different questions, small questions, each carrying 5 marks. Question A, question B, question C, question D, each carrying 5 marks, different questions. Similarly, it may happen, for example, question 2 may have part A, part B, 10 marks, 10 marks, possible, just example. And generally, I have not seen single question of 20 marks. यानी 2 अलग-अलग क्वेश्चन है, 10 मार्क के क्वेश्चन 2 में. हो सकता है क्वेश्चन 3 में है पार्ट ए, बी, सी, ये 10 मार्क्स, ये 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स, जस्ट एग्जांपल. क्वेश्चन 4 में हैव ओनली 2 पार्ट्स, लेट अस से ए, बी, ये 12 मार्क्स, ये 8 मार्क्स, बट टोटल 20. आर यू गेटिंग इट? तो होल क्वेश्चन इज फॉर 20 मार्क्स, बट सब डिवाइडेड इनटू सब क्वेश्चंस, एंड यू हैव टू सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ दीज रिमेनिंग 5. वैसे ये बातें आपने और भी सुन भी ली होगी फैकल्टी से, बट देन आई एम जस्ट मेकिंग क्लियर फ्रॉम माई साइड. दिस इज द पैटर्न ऑफ योर एग्जामिनेशन. मैं बोलूंगा दिस इज बेटर देन द ओल्ड सिलेबस. ओल्ड सिलेबस में क्या होता था, क्वेश्चन यही रहते थे, लेकिन ये 16 मार्क्स ईच के होते थे. पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का और रिमेनिंग 16 के, तो 16 इंटू 5 विल बिकम 80. तो पहले 5 क्वेश्चंस प्लस 1 कंपल्सरी, 6 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे. अभी आपको इसमें से एनी 4 इंटू 20, तो 4 इंटू 20 80 मार्क्स ही हो गए आउट ऑफ 2 to 6, और एक ये 20 मार्क्स का कंपल्सरी. तो एक क्वेश्चन कम किया है इंस्टीट्यूट ने, क्योंकि पहले बहुत कंप्लेंट जाती थी इंस्टीट्यूट को कि पेपर होता ही नहीं लिख के 3 घंटे में, और ये फैक्ट थी. आप क्या, हम भी बैठ गए पेपर लिखने तो भी नहीं होता था 3 घंटे में, ये फैक्ट है. तो हमने भी फीडबैक दिया इंस्टीट्यूट को कि आपने कितना लेंदी पेपर सेट किया है, 3 घंटे में इम्पॉसिबल था इट वाज टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन दोज डेज. तो फिर इंस्टीट्यूट ने क्या किया, जो 16 मार्क्स ईच के ये क्वेश्चन रहते थे, दे मेड इट 20 मार्क्स ईच. तो एक क्वेश्चन कम हो गया उसमें से. आर यू गेटिंग इट? 16 इंटू 5 पहले, तो इसमें से 5 सॉल्व करने पड़ते थे, 6 में से 5, 16 इंटू 5 इसमें से और एक ही. अभी आपको यहां से 4 प्लस 1, 5 क्वेश्चन में आपका काम खत्म हो जाएगा. दिस इज दी पेपर पैटर्न. Right. One more thing I think I forgot to tell you, where I had written that student corner. Yeah. All future updates, like today you are attending this batch, by the time you appear for the exam, one more exam might have taken place in between. So uska suggested answer, if anything new comes in RTP, which is called revisionary test paper, mock test paper, anything we find new which is coming out, we put it here. Means I have a habit of putting it here on our website under student corner. So all future updations you will automatically get here. Correct? क्योंकि वो प्रैक्टिस मैनुअल 4 में कुछ सजेस्टेड आंसर प्रिंट किए हैं, जितने इंस्टीट्यूट के पब्लिश हो चुके उसमें मॉडिफाई करके प्रिंट किया मैंने. उसके आगे के, तो उसके आगे क्या बोलेंगे, वहां तो है ही नहीं, तो वो कहाँ मिलेंगे, जैसे जैसे रेडी होते जाएंगे मैं यहाँ पर अपलोड करते जाऊंगा. इट्स अ PDF फाइल, यू कैन डाउनलोड, यू कैन गेट इट प्रिंटेड. Is that okay? So all future updation and changes you will find always under student corner on our website. Is that clear? Okay friends, we will start with the subject unless you have any other general query to ask. So I am starting with the actual subject now. This is chapter 1. एक काम और कर सकते, आपको ये नोट्स का पूरा सेट मिलेगा ऑन एडमिशन, एंटायर सेट ऑफ 4. उसके पहले यदि आपको लगता है कि कुछ पहले 2-3 दिन के लिए हमको नोट्स की कॉपी चाहिए, फ्यू पेजेस, तो वो भी इधर ही अवेलेबल है. इट मीन्स यू कैन डाउनलोड फ्यू पेजेस ऑफ नोट्स फॉर फर्स्ट फ्यू डेज फ्रॉम स्टूडेंट कॉर्नर. उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, तो इंटर CA में लिस्ट में आपको मिलेगी वर्जन 3 नोट्स. सो फ्यू पेजेस फॉर बिगिनिंग डेज आर अवेलेबल देयर. यू कैन डाउनलोड एंड गेट इट प्रिंटेड एंड यू कैन ब्रिंग इट टू द क्लासरूम. बाय द टाइम यू टेक द एडमिशन यू विल गेट द एंटायर सेट ऑफ नोट्स. वो भी अवेलेबल है वहाँ पर. ठीक है. So I am beginning with chapter number 1.
Chapter 1 is basic cost concepts, and you people being studying this subject for the first time will start from scratch. आपको और कुछ तो पूछना नहीं है, because now the moment I start with the subject I'll end with the subject only. बीच में और कुछ नहीं करता मैं, ये मेरी आदत है. I'm dot on my target now and I know the length and width of the subject. एक बात बतानी रहेगी आपको. I've done my graduation as well as post graduation, that is MCOM with special subject cost and management accounting itself, so I can tell you with confidence. यूनिवर्सिटी में, पुणे यूनिवर्सिटी में 5 साल के सिलेबस में 3 ईयर बीकॉम एंड 2 ईयर एमकॉम में जितना नहीं पढ़ा उससे ज़्यादा डेप्थ में आपको कॉस्टिंग 3.5 मंथ्स में पढ़ना है. यानी देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ यूनिवर्सिटी सिलेबस इन दिस सिलेबस. एमकॉम के पेपर भी एकदम चिल्लर है, यानी ICA स्टूडेंट्स के लिए. कॉस्टिंग के उठा के देख लेना आप, यानी डेप्थ ही नहीं उसमें. जो क्वेश्चन 5 मार्क के लिए भी इंस्टीट्यूट नहीं पूछती, वहाँ 20 मार्क्स के लिए पूछते वो क्वेश्चन. I'm not joking. You can go and verify. और मैंने किया हुआ है वो. It means my job is to cover university 5-year syllabus in more depth for you people in 3.5 months. So consider the challenge which I am having and you are having. मेरा सब्जेक्ट बहुत लाइट वेट रहता ना तो मैं भी बहुत मौज मस्ती करवाता आपकी क्लास में और मैं भी बहुत सारी छुट्टियां देता. But then unfortunately it is a too lengthy subject and too much to teach, and I have that much substance to teach you, and therefore I restrict myself only to the subject. ये मेरी मजबूरी है दोस्तों. बीच बीच में एक हाथ स्टोरी इधर उधर सुना दिया करूँगा, ऐसा नहीं है, इधर उधर जोक भी मार दिया करूँगा, लेकिन मेजॉरिटीली आई विल बी ऑन द सब्जेक्ट क्योंकि मजबूरी है. तो सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूँ, उसके पहले ही आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ. चलो सब्जेक्ट स्टार्ट करने के पहले इधर से कुछ पूछना तो नहीं है? राइट. दोस्तों, myself being Agrawal, most of the people, Agrawal people are from, originated from Rajasthan. पता होगा आपको, नहीं पता हो तो मैंने बता दिया. मैं स्टोरी सुना रहा हूँ बिफोर गोइंग टू द सब्जेक्ट. तो छोटे बच्चे जब घर में जन्म लेते हैं तो कुछ दिन बाद अपन वो कुल देवी के यहाँ जाने की प्रथा है सभी को. मैं छोटा होऊंगा तो मेरे माँ बाप भी ले गए होंगे, आपको भी ले गए होंगे, और फिर मुंडन करवाते, बाल निकाल देते देवी के सामने. तो हम भी गए दोनों बच्चों को लेके. तो हमने फिर ऐसा सोचा समय निकाल के कि वो भी कर लेंगे, देवी कुल देवत के दर्शन भी कर लेंगे राजस्थान तरफ और थोड़ा घूम भी लेंगे राजस्थान. तो वी हैड हायर्ड वन एम्बेसडर कार देयर. एम्बेसडर कार पुरानी थी, एकदम स्पेशियस रहती थी, लेकिन अभी चली गई, वो मॉडल बंद हो गया. हिंदुस्तान मोटर्स कंपनी की थी, मॉडल गॉन, कंपनी स्टॉप्ड. तो हमने वो हायर की एंड वी वेर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऐसे चालू थे. अब एक जगह जाते जाते वो शाम का टाइम जो था, शाम के टाइम पे जैसे लोगों को चाय की आदत रहती है, बराबर है ना. वो चाय का समय हो गया तो चाय चाहिए, राइट. वेळेवर चहा लागतोच. I know Marathi a little, so very well, huh? Right. Anyway, but the communication language would be English plus Hindi. तो चाय का टाइम हो गया, मैं ड्राइवर के बाजू वाली सीट पे था, पीछे से आवाज आई, लेडीज लोग थी पीछे. तो मैंने बोला भाई चाय का टाइम हो गया, गाड़ी रुकनी पड़ती. मैंने ड्राइवर को बोला भैया देर अच्छी सी जगह देख के, चाय की अच्छी सी जगह देख के गाड़ी रोक देना. राजस्थान में आओ भगत वगैरह बहुत करते हैं, यानी पधारो म्हारो देश. हाँ, तो इट्स वेरी गुड पीपल, नाइस पीपल, नाइस फूड. तो उसने एक ढाबे पे गाड़ी रोक दी चाय के लिए. उतरे हम लोग, मैं गया उसके पास, ढाबे वाले के पास, उसको बोला भैया स्पेशल चाय बनाना सबके लिए, स्पेशल. उसने बनाई जो भी स्पेशल चाय थी और सबको दी. वो चाय का पहले घूंट लिया तो लेडीज सेक्शन में से आवाज आई, मजो नहीं आया. कुछ समझा क्या बोला? मजो नहीं आया. अब देखो घर की चाय, ढाबे, वैसे ढाबे वाले अच्छी चाय बनाते हैं, लेकिन जो भी होगा वो टेस्ट पसंद नहीं आया, उनके मुंह से निकल गया, मजो नहीं आया.
और वो किस्मत ऐसी कि उसने सुन लिया और उसको समझती वो लैंग्वेज। ढाबे वाले ने सुन लिया कि इन्होंने बोला मजो नहीं आया, वो टर्न होके वापस आया, चाय दे के गया ही था, उसने सुन लिया मजो नहीं आया तो वापस आया और मेरी वाइफ के सामने बोला, खड़े रह के बोले, बहन जी, बहुत पोलाइट रहते हैं वो लोग, ध्यान से सुनना आगे की बात, थोड़ा सा राजस्थानी लैंग्वेज में है। बोले, बहन जी, मजो कोई थारो गुलाम है? बहन जी, मजो कोई थारो गुलाम है जो थे बुलावेगा और वो आ जावेगा। मीनिंग, ये जो मजा नहीं आया, बोले मजा की गुलाम है क्या आपका कि आपने आवाज दिया और वो आ जाएगा? सो मजो कोई थारो गुलाम है जो थे बुलावेगा और वो आ जावेगा। मजो तो लेते आनो चाहिए, मजो तो लेते आनो चाहिए। कुछ बात समझी? यानी मजा आपके बुलाने से आएगा क्या? नहीं, तो चाय का मजा लेते आना चाहिए। आप बोलेंगे सर ये फालतू स्टोरी सुनाई क्यों? नहीं, मैं फालतू चीजें करता ही नहीं क्लास में, बिल्कुल नहीं। अब आ गया मैं आपके सब्जेक्ट पे। ये जो सीए कोर्स जो आप ज्वाइन किए और इंटरमीडिएट तक पहुंच भी गए, ये कोर्स करने में क्या मजा आता है? आजा आजा आजा, मजा आता है ये कोर्स करने में? मजा नहीं आता, ये सजा है ये। तो दोस्तों, मजा तो लेते आना चाहिए, यानी सीए कोर्स करने का मजा आपने लेना है। तो दोस्तों, ये एटीट्यूड का फर्क है। करना तो है सीए, हमने किया, आपने भी करना है, आप वो बनने के लिए आए हो यहाँ पर, लेकिन आप रो रो के करेंगे ना रोज, सुबह उठना पड़ता है, फिर खाना ऐसे ही मिलता है और ये ऐसे ही होता है और होमवर्क, तो दोस्तों लाइफ विल बिकम मिजरेबल, लाइफ विल बिकम मिजरेबल जस्ट बिकॉज ऑफ एटीट्यूड। तो जब ये काम करना है दोस्तों, तो हंसते हुए करना है। मैं भी कोशिश करूंगा हंसते हुए पढ़ाने की, और आपने भी हंसते हुए उसको पढ़ना। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ये कोर्स आसान नहीं है, ये राह आसान नहीं है, ये तो आपको फाउंडेशन ज्वाइन करने के पहले ही लोगों ने बता दिया होगा। अरे लोग जो आपके जो शुभ चिंतक रहते हैं बोलते हैं अभी क्या कर रहा है, यानी आप जैसे ही बोलते हैं ना कि आई वांट टू डू सीए, तो बोलते हैं ना अभी क्या कर रहा है। जैसे अपन कोई सुसाइड करने वाले को बोलते हैं ना अभी क्या कर रहा है, उसको बचाने जाते हैं। तो डूइंग सीए कोर्स एंड कमिटिंग सुसाइड इज वन एंड द सेम। तो बहुत लोगों ने आपको कोशिश की बचाने की, अरे क्या कर रहा है, देखो 10 साल से कर रहा है, देखो 25 साल से कर रहा है, तो क्या कर रहा है, रुक जा। लेकिन आप मानेगा, आप तो पास हो गए, फाउंडेशन आ गए, इंटरमीडिएट में बैठे हो क्लास में, यानी आपने डिसाइड कर ही लिया है ना, तो मजे से करो। नहीं, मजे तो लेते आना चाहिए। तो हंसते हंसते करो दोस्तों, तो ये जिंदगी या ये राह आसान बनेगी। रोते रोते करेंगे तो आप 4 दिन में भाग जाएंगे, 4 दिन में भाग जाएंगे। तो यू हैव टू फेस इट नाउ। और मैं एक सेंटेंस बड़े कॉमनली बोलता हूं, दैट ऑर्डिनरी कोर्सेस आर डन बाय ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी कोर्स है नहीं, बीकॉम बीकॉम बेकॉम, एनीवे मैंने भी किया, वो आप भी कर ही रहे होंगे। तो ऑर्डिनरी कोर्सेस आर डन बाय ऑर्डिनरी पीपल, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज डन बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल लाइक यू। Feel special that you are extraordinary people, you are made for it. It's a tough course for tough people, no? Right? तो ये रोज ये भावना रखना है आपके दिल में, तो आपको ये जर्नी आसान लगेगी। शेड्यूल तो आपका टाइट होगी, आपको पता ही है। ऐसे शेड्यूल में रहने की कॉमर्स के स्टूडेंट्स को आदत नहीं है, साइंस वालों को है, कॉमर्स वालों को नहीं है। कॉमर्स वाले तो कॉलेज का एक चक्कर मारते, देखते किधर क्या चल रहा है, क्या हैपनिंग प्लेस है, कैंटीन में जाते, थोड़ा बहुत खाते पीते आ गए घर में। एग्जाम के पहले 30 क्वेश्चन की बुकलेट पढ़े, फर्स्ट क्लास पास। यहाँ कुछ नहीं होने वाला, कितना ही पढ़ लो, कितना ही पढ़ के जाओ, साला कुछ तो भी नया ही मिलता वहाँ, कहाँ, एग्जाम में। तभी तो उसका कोर्स का नाम सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सीए का फुल फॉर्म है कम अगेन। कम अगेन मई में आया था ना, नवंबर में आया था ना, अगले मई में। ये ऐसा कोर्स है कम अगेन। तो जिसने इसको लाइटली लिया, इस कोर्स ने उसको डबल लाइटली लिया। तो आते ही रहे बेटा, बुढ़ापे तक देखो। रेस्ट्रिक्शन रखा ही नहीं इंस्टीट्यूट ने, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं है। फीस भरते रहो, आते रहो। क्यों? कम अगेन, हमारी भी कमाई हो रही, आओ। उसके साथ हम टीचर लोगों की कमाई, ले रिवीजन बैच, फिर ले वाला अगला वर्जन। मेरी दिली इच्छा है सब लोग एक अटेम्प्ट में पास हो, हमारे पास डबल से आने की जरूरत ना पड़े, हमको नहीं चाहिए वो पैसे। एक बार पढ़ो, दिल से पढ़ो, और डायरेक्ट एक जंप में दोनों ग्रुप पास करो, और एक जंप में फाइनल। आइडियल प्लान, बेस्ट प्लान, पॉसिबल हुआ तो
फाइनल के दोनों ग्रुप की तैयारी ऐसी करो, एक जंप में सीए खटा, 3 स्टेप में चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाउंडेशन, इंटर दोनों ग्रुप, फाइनल दोनों ग्रुप, नथिंग लाइक इट। अच्छा, ऐसा बाकी लोग नहीं कर रहे, मैं कोई ऐसी इमेजिनरी बातें कर रहा हूं ऐसा लग रहा है क्या आपको कि जो इम्पॉसिबल है? लॉट मेनी पीपल हैव डन इट। तो उस तैयारी से ही पढ़ना है। और मैं चालू कर रहा हूं चैप्टर 1, कंसेप्चुअल है। ये सब सीए फाइनल में भी 100 मार्क्स का पेपर है, उसके काम में आता है। एंड लेट मी टेल यू माय एक्सपीरियंस एज आई एम टीचिंग इन सीए फाइनल आल्सो। आई हैव सीन समटाइम्स पीपल हैव समहाउ मैनेज्ड टू पास इंटरमीडिएट विदाउट studying the basics, and then they face huge problem in understanding CA final, क्योंकि CA final level पे institute has assumed that you have cleared intermediate, means you possess this basic knowledge। तो मुझे उनका रिवीजन कराना पड़ता है, पहले इंटरमीडिएट का रिवीजन करा के फाइनल पढ़ाना पड़ता है उनको। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो वी आर बिगिनिंग विद, ओके, I am on chapter 1, basic cost concepts. Friends, we'll start with the word cost itself. Actually, I have to take you through 3 important words: cost, costing, cost accountancy, but one by one. First, I'll take you to the word cost. Cost is, even if you don't write, doesn't matter, it is printed in the notes. Cost is the monetary value of all sacrifices made to achieve an objective. इस डेफिनेशन को डिकोडिंग करेंगे। यू डोंट हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट एंड राइट इट। हाँ, ये वो सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट बहुत लॉजिकल है। दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट। यहाँ अंडरस्टैंडिंग पे स्ट्रेस ज्यादा देना है देन रटने पे। स्पेशली बीकॉम की स्टाइल से ये पेपर नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर दिस सब्जेक्ट देन रिमेंबरिंग। कुछ सब्जेक्ट है जहां यू हैव टू रिमेंबर, लाइक टैक्सेशन प्रोविजन, यू हैव टू remember, you can't, plus you should know it also, but there the pressure is more on memory. Here the pressure will be more on brain, this subject. Let's go one by one. Cost is monetary value. Cost we always express in money value. जैसे if I am a pen manufacturer, marker pen, तो मैं इसकी cost बोलूंगा suppose 32 rupees. तो ₹32 मीन्स आई हैव एक्सप्रेस द कॉस्ट इन मनी वैल्यू, रुपी वैल्यू। तो हम कोई भी चीज जो भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसकी कॉस्ट हम रुपीज में बोलते हैं। तो कॉस्ट इज ऑलवेज मेजर्ड इन मनी वैल्यू। पॉइंट नंबर 1, इट इज मनी वैल्यू ऑफ व्हाट? सो इट इज मनी वैल्यू ऑफ सर्टन सैक्रिफाइसेस। ये शब्द को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं थोड़ी देर बाद। सैक्रिफाइसेस विच आर मेड टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपने जो सैक्रिफाइस किए हैं, उस सैक्रिफाइस को आप मनी वैल्यू में यदि कन्वर्ट कर दो तो आपको उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने की क्या मिल सकती है? कॉस्ट। पहले एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं, देन आई विल गो अहेड। योर ऑब्जेक्टिव इज टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, नेचुरली। अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कुछ खर्चा तो लगता ही है। सो व्हाट यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हाटएवर सैक्रिफाइसेस यू आर मेकिंग इन योर लाइफ, उसकी लिस्ट बनानी है। सैक्रिफाइसेस की क्या करना है? लिस्ट, कि सीए बनने के लिए क्या क्या सैक्रिफाइस किया। इवन जैसे आप ट्रैवल करके यहां आए तो ट्रैवलिंग कॉस्ट इज अ सैक्रिफाइस। आप जो टाइम दे रहे हैं वो भी है, ट्रैवलिंग कॉस्ट इज सैक्रिफाइस। आपके पेरेंट्स ने फीस भरी, वो भी सैक्रिफाइस है ना, मनी सैक्रिफाइस किया उन्होंने सब। तो सीए बनने में जो जो सैक्रिफाइसेस हुए उसकी लिस्ट बनाओ, उस सैक्रिफाइस के आगे उसकी मॉनेटरी वैल्यू लिखते जाओ। लिस्ट बनाई, मनी वैल्यू लिख दी। कुछ चीजें तो मनी वैल्यू में है, जैसे फीस भरेंगे तो आपको पता ही है उसकी मनी वैल्यू कितनी है। हाँ, कुछ चीज की वैल्यू निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, जैसे आपका जो टाइम जाएगा,
लेकिन उसकी कोई वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको। तो कुछ चीजों के लिए डिफिकल्ट है, कुछ चीजों के लिए आसान है। और वो मॉनेटरी वैल्यू की जो लिस्ट है उसकी टोटल मार दी अपने मनी वैल्यू की, तो आपको क्या मिल गई? कॉस्ट ऑफ बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कुछ समझ में आया? नाउ विल टॉक फ्रॉम इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम अवर सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव इज either to produce and sell goods or to provide services. Our major discussion in the classroom and from exam point of view will be either producing goods or providing services. उसमें भी more focus is always on manufacturing activity, यानी on goods. इससे एक बात और भी ध्यान रखना है आपने, थोड़ा सा बिजनेस का नॉलेज धीरे धीरे आपने अचीव करते जाना है। यानी धीरे धीरे दूसरे सोशल मीडिया जो आलतू फालतू चीजें आपको देते हैं, आजकल इंफॉर्मेशन ओवरलोड का जमाना है, सो यू शुड बी सिलेक्टिव टू कैप्चर विच इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस, बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज मोर रिलेटेड टू बिजनेस एंड मोर क्लोज टू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। एनीवे वी विल बी डीलिंग विद सर्विसेज ऑल्सो, यानी दोनों है आपके सिलेबस में, सर्विस इंडस्ट्री भी है, एक चैप्टर है स्पेशली, वन चैप्टर इज डिजाइंड ऑन सर्विस इंडस्ट्री, बट मेजॉरिटी आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग. So whenever I am giving example, assume by default that majority I am giving you the example of a manufacturing activity, though we will be covering both. और वैसे भी रियल लाइफ में दो ही तो इंडस्ट्री है, प्रोड्यूसिंग गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विसेज. आई एम प्रोवाइडिंग यू अ सर्विस, बट व्हेन आई परचेज दिस somebody produced it, the marker pen. तो ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस एंड सेल द गुड्स और ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विसेज. To achieve this objective, we have made certain sacrifices whose money value is called cost of those goods or cost of providing these services. अब इस वर्ड को डिकोड करता हूं मैं, sacrifices for manufacturing industry. In manufacturing industry, sacrifices are of three types, which are popularly called as three elements of cost. दोस्तों डेफिनेशन में जो वर्ड सैक्रिफाइसेस है ना, उसका करेक्ट मतलब है थ्री एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. में सैक्रिफाइसेस आर डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स एंड दोज आर मटीरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इंस्टीट्यूट ने इसको और एक नाम दिया है एम्प्लॉई कॉस्ट, both means one and the same. Third is expenses. From manufacturing angle, manufacturing industries angle, if you want to produce and sell the goods, you have to make three sacrifices, means three types of cost. Sacrifices को क्या समझना है? Types of cost or elements of cost. Cost के तीन तरीके हैं, एक material cost, one of the type, labor cost also known as employee cost, and third is expenses. So all costs are divided only in three parts: material, labor and expenses, and here we will get total cost. Now I generally give the example of this desk bench on which you are sitting for imagination purpose. This desk bench must have been manufactured by a furniture manufacturer before selling it to the coaching classes. तो मैन्युफैक्चरर के एंगल से कॉस्ट निकालेंगे, मैन्युफैक्चरर ऑफ डेस्क बेंच. ये डेस्क बेंच मैन्युफैक्चर करने में देयर आर सम टैंजिबल आइटम्स हैविंग फिजिकल सब्सटेंस which are getting consumed in the process of manufacture. Tangible items having physical substance getting consumed in the process of manufacture. All this cost is called material cost. Physical tangible items getting consumed in the process of manufacture is called material cost. या material sacrifice है वो, तो material cost. Now just imagine कि ये डेस्क बेंच मैन्युफैक्चर करने में क्या क्या टैंजिबल आइटम्स लगे होंगे, मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या लगा होगा. वुड यानी प्लाईवुड, सनमाइका ऊपर का बराबर, स्टील फ्रेम, उसके वेल्डिंग रॉड्स, पेंट, उसके आजू बाजू में एक पट्टी लगी हुई है, उसको बोलते हैं बीडिंग पट्टी कारपेंटर की लैंग्वेज में, सो दैट द सरफेस रिमेन्स स्मूथ, बराबर.
और उसको और स्मूथ करने के लिए पॉलिश पेपर से घसते हैं, आपको पता होगा। तो वो भी तो मटेरियल है ना सब, विच गॉट कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। इतना तो विजिबल है, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया। तो ये सब खरीदना पड़ा होगा मैन्युफैक्चरर को और इसमें कंज्यूम हो गया वो, तो उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, ये सब टेंजिबल फिजिकल आइटम्स की मॉनेटरी वैल्यू को हम क्या बुलाते हैं, इस मॉनेटरी वैल्यू को क्या बुलाते हैं, मटीरियल कॉस्ट। सिंपल है, मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल तो लगेगी ना, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं रॉ मटेरियल। वे रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग करना है और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, बस इतना से इमेजिनेशन करना है आपने। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आज के आगे आप यूट्यूब भी देखेंगे ना, तो यूट्यूब पे एक फैक्ट्री मेड करके कुछ एक सेक्शन मिलेगा आपको, कभी सर्च करेंगे। आपने सिर्फ चॉइस अलग करना है, यूट्यूब भी यूज करो लेकिन पढ़ाई के लिए। तो फैक्ट्री मेड आप टाइप करेंगे या बोलेंगे तो उसमें कुछ टीवी पे पहले सीरियल आते थे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के, उसके वीडियोस है। तो आपको अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वीडियो देखने को मिलेंगी कि वो काम कैसे होता है। दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। सी सेम यूट्यूब टाइम पास करने के लिए भी यूज किया जा सकता है और एजुकेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है, चॉइस आपकी है कैसे करना। तो आज की तारीख में यहां से क्लास से उठ के किसी की परमिशन लेके फैक्ट्री देखने जाना, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। किसी ने परमिशन देना और अपन ने सबने मिलके एक दिन निकाल के जाना और सब क्लासेस को छुट्टी मार के। तो आज घर बैठे फ्री टाइम में आप अलग अलग फैक्ट्री का प्रोडक्शन देख सकते हैं। आपका वो पसंदीदा आइटम कुरकुरे, उसका भी वीडियोस पे कि कैसे बनते हैं वो। ये हमारे काम का है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। तो उसी को इमेजिनेशन करते हैं। तो पहले रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट हुई है। उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए मैन पावर लगेगी, ह्यूमन एफर्ट्स। वो ह्यूमन एफर्ट्स की कॉस्ट वो एम्प्लॉयर उसको किस फॉर्म में पैसे देता है, सैलरीज एंड वेजेस। तो सैलरीज एंड वेजेस ऑफ एम्प्लॉई, फॉर एम्प्लॉय इट इज अ इनकम, बट फॉर एम्प्लॉयर इट इज अ कॉस्ट। तो वो ही लेबर कॉस्ट या एम्प्लॉय कॉस्ट। इसमें एक बात और क्लियर कर दूं, लेबर वर्ड से आप वो इंग्लिश वाला लेबर पे मत चले जाना। लेबर मीन्स अ ब्लैकिश फेलो स्वेटिंग अ लॉट डिगिंग अलोंग द रोड साइड, इतना रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग मत लेना। कॉस्टिंग में लेबर का मतलब मैन पावर कॉस्ट। ऑल एम्प्लॉयज, ऑल एम्प्लॉयज यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी उस कंपनी का एम्प्लॉय है तो उसकी सैलरी भी इसी में है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ऑल एंटायर मैन पावर कॉस्ट comes in the category of labor cost और employee cost। तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए मटेरियल लगा, वो इधर आ गया, मैन पावर लगी, उसकी कॉस्ट इधर आ गई। इसके अलावा भी कुछ लगेगा ना, कि इतने से काम हो जाएगा, इसके अलावा भी कुछ लगेगा, वो इधर आएगा। अब इसके अलावा और क्या क्या इमेजिन करो, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। मशीनरी लगेगी, वेरी गुड। तो मशीनरी का डेप्रीसिएशन, मशीनरी का डेप्रीसिएशन। मशीनरी क्यों नहीं, मशीनरी की कॉस्ट यहां लूंगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कंसीडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा ना। डोंट कंसीडर मशीन हियर, कंसीडर डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन ना, फॉर यूजिंग द मशीन, बिकॉज मशीन हैज गॉट अ लॉन्गर लाइफ। वो मशीन आप 10 साल यूज करेंगे तो आपको एक साल में कितना डेप्रीसिएशन चार्ज किया वो ले लो यार। गेटिंग इट? बराबर आपने बोला, मशीनरी का डेप्रीसिएशन और बिल्डिंग का रेंट, करेक्ट, मशीनरी का मेंटेनेंस, बराबर, एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, करेक्ट, आपने सबने बराबर बताया। सो यू हैव स्टार्टेड इमेजिनिंग। तो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को इमेजिन करेंगे आप तो आपको तीनों चीज मिल जाएगी। आपको मटेरियल लगता है, मैन पावर लगती है और इसके अलावा जो जो खर्चे लगते हैं वो सब एक्सपेंसेस में जाते हैं, राइट। यदि मैं आपको टीचिंग का ही एग्जांपल दे दूं इस अपनी इंडस्ट्री का, तो हम जो एक फिजिकल चीजें आपको देंगे इसकी कॉस्ट मटेरियल में चल जाएगी। फिजिकल टेंजिबल आइटम्स जो हम आपको देंगे, मैन पावर की कॉस्ट लेबर में, और ये इसका रेंट प्रीमाइसेस का, इसका डिप्रिसिएशन डेस्क बेंच का और बाकी एसी वगैरह का और इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये सब कहाँ जाएगा, एक्सपेंसेस। यू कैन इमेजिन, आपके ध्यान में आएगा, यू इमेजिन एनी इंडस्ट्री, cost will be divided only in 3 parts. Anything which doesn't go in these 2 categories will automatically come to the 3rd category, that is called expenses, and it makes it total cost. Now each of these 3 costs are further subdivided into 2 parts.
ईच ऑफ देम, वेरी गुड। मटेरियल कॉस्ट के हम दो पार्ट करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर के भी डायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस के भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो ईच ऑफ द कॉस्ट इज फर्दर सब डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। सेम कॉस्ट ना, यानी मटेरियल कॉस्ट के दो हिस्से कर रहा हूं मैं। इन दोनों को मिला दोगे तो मटेरियल हो गया, इन दोनों को मिला दोगे तो लेबर हो गया, ऐसा उसी के दो पार्ट कर रहा हूं, यानी क्लासिफिकेशन, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। So we are doing further classification of cost. Basically it is direct cost and indirect cost. Now on what basis you will decide whether it is direct or whether it is indirect? So I'll utter one sentence first. The cost which has a direct association with cost object. I have uttered a new word, cost object. Any cost which has a direct association with cost object is called direct cost, and any cost which doesn't have a direct association with cost object is called indirect cost. ये बोलने के लिए हो गया टेक्निकल वर्ड्स में, इसको समझाना पड़ेगा ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एसोसिएशन क्या होता है। पहली बात, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? कुछ नहीं दोस्तों, कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज सेम, गुड्स और सर्विसेज। See, your objective was to calculate cost of goods or cost of services, that was your objective, उसी से वर्ड आया cost object। जिस चीज की आपको कॉस्ट निकालना है उस चीज को हम कहते हैं cost object। Means if I am a marker pen producer, my objective will be to calculate cost per pen, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ऐड करके I have to decide the sales price, no? तो मेरा ऑब्जेक्टिव यदि मैं ये बनाता हूं तो इसकी कॉस्ट निकालना है। इफ आई एम अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, माय ऑब्जेक्टिव विल बी टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ अ डेस्क बेंच, तो डेस्क बेंच विल बिकम माय कॉस्ट ऑब्जेक्ट और पेन विल बिकम माय कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इन कोचिंग इंस्टीट्यूशन, इफ वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग कॉस्ट पर स्टूडेंट, देन अ स्टूडेंट विल बिकम कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया? जिस चीज की कॉस्ट निकालना है उसको हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अगेन वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट वही हो गए आपके गुड्स एंड सर्विसेज, यही वाले। अब इस कॉस्ट ऑब्जेक्ट का इस कॉस्ट से जिसकी कॉस्ट निकालना है वो और जो खर्चा लगा वो, इनका रिलेशन, इफ द रिलेशनशिप इज डायरेक्ट, इट मींस you can very comfortably, easily, with lot of accuracy can calculate that cost or correlate that cost, then that cost is called direct cost। थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे प्लाईवुड की शीट जनरली ये आती है मेरे ख्याल से 4x6 और 4x8, तो 4 फीट बाय 8 फीट की अपन ने एक प्लाईवुड की शीट परचेज की। समझो ये प्लाईवुड की शीट आई 2000 रुपीज की, एग्जाम्पल। हाँ, ये कितने स्क्वायर फीट हो गया? 4x6 24, 24 स्क्वायर फीट। तो एक काम करता हूं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसकी कॉस्ट भी ले लेता हूं। 2400 की ये प्लाईवुड शीट आई, तो 2400 रुपीज में वी हैव परचेज्ड अ 24 स्क्वायर फीट ऑफ प्लाईवुड शीट। उसमें से एक डेस्क बेंच बनाने में समझो 6 स्क्वायर फीट शीट लग गई। एक डेस्क बेंच पे 6 स्क्वायर फीट इज द प्लाईवुड शीट गॉट कंज्यूम्ड। 24 स्क्वायर फीट की कॉस्ट 2400, तो 6 स्क्वायर फीट की कॉस्ट 600 होगी ना, 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो 6 स्क्वायर फीट यदि एक में कंज्यूम हुआ तो 600। सो वी कैन इजीली कोरिलेट कि एक डेस्क बेंच बनाने में 600 रुपए का प्लाईवुड लगा। ये बड़े आसानी से निकल सकता है। इसका मतलब ये कॉस्ट हुई डायरेक्ट मटेरियल, जहां पर ये एसोसिएशन बहुत इजीली एस्टैब्लिश होता है विदाउट मच इनएक्यूरेसी, यानी विद लॉट ऑफ एक्यूरेसी। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन हो सकता है। तो जहां ये आसानी से कोरिलेट हो सकती है मटेरियल की कॉस्ट उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट से, तो हम उसको बुलाएंगे डायरेक्ट मटेरियल। ऐसे वो स्टील की भी निकल जाएगी। लेकिन इसको पॉलिश पेपर से घसते हैं कि आप जब बैठो तो हाथ को ये ना लगे, तो पॉलिश पेपर का बंडल लाते हैं। पॉलिश पेपर देखा होगा ना आपने,
उसको स्मूथ करने के लिए। तो पॉलिश पेपर ऑल्सो गॉट कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, तो मटेरियल कॉस्ट है। लेकिन आप मुझे ऐसा कोरिलेट करके बता सकते हैं क्या कि एक डेस्क बेंच के लिए कितना पॉलिश पेपर लगा? ये थोड़ा मुश्किल है, लगा तो है लेकिन ऐसा रिलेशन बैठ नहीं रहा है। तो ठीक है ना, उसको बोलो इनडायरेक्ट मटेरियल। एक और एग्जांपल देके फिर आगे चलता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि वी विल बी हैंडिंग ओवर यू द सेट ऑफ 4 नोट्स। नाउ सपोज द प्रिंटिंग कॉस्ट टू द कोचिंग इंस्टीट्यूशन for this is 1000 rupees per set, and it will be given to each one of you. In each student for us is a cost object in this service industry. Each student is a cost object. Now this is a direct cost for us, that 1000 rupees is spent on each student. So for each student this is my direct material cost, because association can be established very easily, very easily. However, ये मार्कर पेन में जो यूज कर रहा हूं लिखने के लिए, ये मार्कर पेन भी कंज्यूम होने वाले बहुत सारे, 1 or 2 boxes of marker pens will get consumed while teaching this batch, right? 1 box contains 10 pieces, तो 2-3 बॉक्स कंज्यूम हो जाते हैं, कुछ दिन में खराब हो जाता है वो। Now this is also getting consumed, so this is also material cost. Now can I correlate very easily कि कितने रुपए का मार्कर पेन इसके लिए कंज्यूम हुआ, इसके लिए हुआ? इतना इजीली कोरिलेट नहीं होता वो, लेकिन लगा तो है मटेरियल का खर्चा, ठीक है ना, तो उसको डाल दो इनडायरेक्ट। गेटिंग क्लियर? सो एसोसिएशन डायरेक्ट यदि एस्टैब्लिश हो सकता है, जिसकी कॉस्ट निकालना है उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट का और इस कॉस्ट का, 1-to-1 एसोसिएशन इजीली हो सकता है तो डायरेक्ट, इजीली नहीं हो रहा है तो इनडायरेक्ट। लेकिन खर्चा उसी के लिए लगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी खर्चा वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए लगा है, सिर्फ कनेक्शन इजीली एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। इन अदर वर्ड्स we say common cost is indirect cost और specific cost is direct cost। इंग्लिश वर्ड का खेल है। हाँ, एक बात और बता ही दूं, मैं कॉस्टिंग की डेफिनेशन पे जाऊंगा बाद में, अभी कॉस्ट पे चल रहे हैं। कॉस्टिंग की एक डेफिनेशन मेरी वाली आज ही बता देता हूं, याद आइए। तो मेरी डेफिनेशन है ना, एग्जाम में नहीं लिखना। माय डेफिनेशन ऑफ कॉस्टिंग इज, costing is equal to English plus mathematics. This is my definition, राकेश अग्रवाल definition. ऐसा क्यों बोला? कौन से सब्जेक्ट को किधर जोड़ा आपने? लेकिन ये करेक्ट है, हाँ, ये डेफिनेशन करेक्ट है, पब्लिश नहीं है, मेरी बनाई हुई है। To understand the subject and to understand the question you need English, and to solve the question you need mathematics. तो ये दो सबके अच्छे रहते हैं, अदरवाइज यू वुड नॉट हैव रीच टू दिस। लेकिन किसी का ये वीक है, कोई डिपार्टमेंट इसमें से, तो थोड़ा इंप्रूवमेंट कर लेना, क्योंकि कॉस्टिंग नहीं समझा, इसका ये क्यों नहीं समझा, हम जब रीजन ढूंढते हैं तो आइदर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश और देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा, अपने को एक्सपर्ट नहीं बनना है, इंग्लिश लिटरेचर या पीएचडी नहीं कर रहे अपन, या मैथमेटिक्स में कुछ एक्सपर्टीज नहीं कर रहे, बेसिक मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड बेसिक रीजनेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, नॉट एक्सपर्टीज। लेकिन ये मिसिंग रहा तो ये सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। जस्ट मेरे को याद आया तो बता दिया मैंने। सो बी केयरफुल। मैं बोल रहा था स्पेसिफिक कॉस्ट और कॉमन कॉस्ट। स्पेसिफिक वर्ड का अपना मीनिंग है, स्पेसिफिक कॉस्ट इज डायरेक्ट, कॉमन कॉस्ट इनडायरेक्ट। एक और एग्जांपल लेते और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इसका ले लेते, चलो एक मेरा ही लेता हूं, फिर बाद में दूसरा मैन्युफैक्चरिंग का लेता हूं। Suppose I am paid by the coaching institution on the basis of number of students, यानी I get X rupees per student. If that is the way I get the remuneration, then for coaching institution, my remuneration is cost for them. It's a manpower cost. सभी manpower को labor cost बुलाते हैं costing में. It's the manpower cost, and it can be correlated with each student. Then it will become direct labor cost for coaching institution, because it can be easily correlated if I am paid on the basis of X per student into number of students. But there are other staffs also, office staff who open the classroom, clean the classroom, handle the inquiry, give you the admission. आपको लगता है उनको भी सैलरी पर स्टूडेंट बेसिस पे देते होंगे? फिर वो कॉमन सर्विस दे रहे हैं, आपकी भी इंक्वायरी हैंडल कर रहे हैं, फाउंडेशन की भी, फाइनल की, सभी बैचेस की, तो वो भी मैन पावर कॉस्ट है।
लेकिन उसका 1-to-1 कोरिलेशन नहीं हो रहा है, तो आप उनको क्या बुलाएंगे? इनडायरेक्ट लेबर। नाउ वी गो टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये डेस्क बेंच जो वर्कर एक्चुअली बना रहे हैं एक्टिवली, यानी ये पीसेस काट रहे, जोड़ रहे, असेंबल कर रहे, उनकी जो सैलरीज वेजेस है ना, वो जाती है डायरेक्ट लेबर, क्योंकि कोरिलेट कर सकते। कैसे बताता हूं, हाउ यू कैन कोरिलेट 1-to-1 इजीली। तो वो जो लेबर काम कर रहा है एक्चुअल प्रोडक्शन फैक्ट्री में, उसकी वेजेस डायरेक्ट लेबर, लेकिन उसका एक सुपरवाइजर है, वो आता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आज ये काम करना है, इतना करके रखना है, ऐसे ऐसे करना है, वो दूसरे साइड पे चला जाता है, दूसरी जगह चला जाता है। उस सुपरवाइजर की भी तो सैलरी दे रहे हैं आप, लेकिन उस सुपरवाइजर की वेजेस या सैलरी को एक एक डेस्क बेंच से कोरिलेट करना पॉसिबल नहीं है, तो उसकी सैलरी वेजेस कहां गई? इनडायरेक्ट लेबर। इवन प्रोडक्शन मैनेजर सैलरी, प्रोडक्शन मैनेजर सैलरी विल गो टू इनडायरेक्ट लेबर। गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब ये जो वर्कर है, जो ये डेस्क बेंच बना रहा है, इसको दो तरीके से पेमेंट करते हैं, वो हम किसी और चैप्टर में पढ़ने वाले, लेबर कॉस्ट टॉपिक में। ब्रीफ में बताता हूं। एक होता है टाइम रेट सिस्टम और एक होता है पीस रेट, विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दैट चैप्टर। टाइम रेट और पीस रेट। पीस रेट यानी कितने पीसेस आपने प्रोड्यूस किए उसके बेसिस पे पेमेंट करना। यानी वर्कर की टीम को बोला भाई एक डेस्क बेंच बनाया तो 500 रुपीज देंगे हम आपको, फिर आप जितने पीसेस आज प्रोड्यूस करके देंगे इंटू 500, तो बहुत ही आसान हो गया। अपनी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी होगी? 500 पर पीस, क्योंकि उसी बेसिस पे दे रहे हैं ना आप उनको। उसको पीस रेट सिस्टम बोलते हैं, जो हम लेबर कॉस्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। दूसरा हुआ टाइम रेट। टाइम रेट यानी आज वो लेबर ने 8 घंटे काम किया आपकी फैक्ट्री में, ही हैज वर्कड फॉर 8 आवर्स, और आप उसको डेली बेसिस पे वेजेस देते कि 8 आवर्स के लिए यू विल बी पेड लेटर से 500 रुपीज। आर यू गेटिंग इट? यानी आप उसको किस बेसिस पे वेजेस दे रहे हैं? कितना टाइम उसने स्पेंड किया फैक्ट्री में। तो 500 रुपीज यू मेक द पेमेंट फॉर 1 डे, और 1 डे में जनरली 8 आवर्स काम होता है। उसको टेक्निकल या बिजनेस लैंग्वेज में कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग लैंग्वेज, शिफ्ट, SHIFT। एक शिफ्ट यानी 8 घंटे काम किया आपने, तो उसको बोलते हैं एक शिफ्ट काम हुआ। मैं इसलिए धीरे धीरे मेरे साथ आपने क्या कोशिश करना है, बिजनेस के वर्ड्स पकड़ना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के वर्ड्स पकड़ना है। कुछ कुछ इंडस्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है, 24 घंटे जहां काम होता है। कुछ कुछ फैक्ट्री ऐसी जो कंटिन्यूस चलती है, तो 3 शिफ्ट में काम होता है। 24 आवर्स डिवाइडेड बाय 3, तो 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट। तो एक शिफ्ट में वर्कर आते, ये जाते, अगले शिफ्ट यानी 8 घंटे काम करने के लिए दूसरे वर्कर आते, ये जाते, फिर और 8 घंटे काम करने के लिए अलग वर्कर आते। तो उसको बोलते 3 शिफ्ट वर्किंग, यानी 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में काम हो रहा है, यानी 24/7। आप जिसको 24/7 बोलते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग में बोलते हैं 3 शिफ्ट वर्किंग। कहीं पर 2 शिफ्ट वर्किंग होता है 8-8 आवर्स की, और कहीं पर सिंगल शिफ्ट 8 आवर्स। ठीक है, वापस आता हूं। हम सिंगल शिफ्ट वर्किंग वाले लोग हैं, ऐसा समझो। हमने वर्कर को 8 घंटे का पेमेंट किया 500। अब ऑन एन एवरेज अपने ये समझ में आया कि 8 घंटे के काम में ये वर्कर्स 8 डेस्क बेंच असेंबल कर लेते बना के। सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, दैट इन 8 आवर्स वर्क वी पे देम हाउ मच? आई सेड 500. So we'll assume 5 desk benches they assemble. How much? 5 desk benches they assemble in 1 day. And we make a payment for 1 day how much? 500 rupees. ये आपका approximate calculation है। तो 500 rupees paid for 5 desk benches. तो एक desk bench का खर्चा 100, which is direct labor cost. लेकिन supervisor, manager इनका खर्चा indirect labor cost, क्योंकि उसका 1-to-1 correlation लगाना बहुत मुश्किल है। अब आते हैं एक्सपेंसेस पे। मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंसेस आर इनडायरेक्ट। आई रिपीट, मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंसेस आर इनडायरेक्ट, एक्सेप्ट वेरी फ्यू एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्ट इन नेचर। यानी एक्सपेंस और वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अब आपने जो एग्जांपल दिया था डेप्रिसिएशन, वो इधर जाएगा। डेप्रिसिएशन ऐसा निकाल सकते क्या? 1 यूनिट बना, मशीन इतनी डेप्रिसिएट हुई, मुश्किल। या रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस, एक स्टूडेंट ने, एक स्टूडेंट आया, इतना रेंट लगा, मुश्किल है। इसका मतलब ही वो क्या है? इनडायरेक्ट। कॉमन खर्चा है ना। जैसे हमने क्लासरूम रेंट पे लिया, तो आपकी बैच को भी पढ़ा सकते हो और भी बहुत सारी बैचेस पढ़ेंगी, तो ये सभी बैचेस के लिए क्या हुआ? कॉमन खर्चा। जब खर्चा स्पेसिफिक लगता है तो डायरेक्ट हुआ, कॉमन लगता है तो इनडायरेक्ट हुआ। इलेक्ट्रिसिटी बिल,
हम ऐसा देते क्या, एक स्टूडेंट इतना बिल, यानी वो डायरेक्ट हुआ कैसा, मेरा कहना है। डेप्रिसिएशन इज नॉट डायरेक्ट एक्सपेंस, रेंट इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस। इट मींस मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंसेस आर इनडायरेक्ट इन नेचर। इसका मतलब ये समझ लेने का कि डायरेक्ट एक्सपेंस रहते ही नहीं, रहते हैं। सो विल सी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, दो दे आर वेरी फ्यू। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट को आपने डिजाइन कराया, जैसे ये डेस्क बेंच को आपने डिजाइन एक डिजाइनर से करवाया, प्रोफेशनल डिजाइनर से, उसको कुछ अमाउंट पे किया आपने, 10,000 रुपीज यू हैव पेड टू दैट प्रोफेशनल डिजाइनर एंड गॉट द डेस्क बेंच डिजाइन्ड, राइट। जैसे बिल्डिंग बनाने के पहले आर्किटेक्ट से उसका डिजाइनिंग करवाते हैं ना, ब्लूप्रिंट जिसको हम बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन होता है। तो हर चीज को, कार प्रोड्यूस करने के पहले कार का डिजाइन बनाना पड़ता है। तो हमने डेस्क बेंच का डिजाइन किसी प्रोफेशनल डिजाइनर से बनवाया बाय पेइंग ₹10,000, और वो डिजाइन हमने फर्नीचर मैन्युफैक्चरर को दिया कि भाई ये डिजाइन से हमको डेस्क बेंच बना के देना, इसकी विड्थ इतनी, हाइट इतनी, कलर इतना, उसने बना के दिया। अब वो 10,000 rupees if we have spent and we got 50 desk benches manufactured, तो can you correlate that this 10,000 is paid for 50 desk benches? इसी के लिए किया ना, कि दूसरे डेस्क बेंच के लिए डिजाइन बनाया। तो यू कैन कोरिलेट कि ये डेस्क बेंच के लिए वी हैव पेड 10,000 रुपीज फॉर 50 डेस्क बेंचेस, 50 डेस्क बेंच डिजाइन किए। तो आप 10,000 को डिवाइडेड बाय 50 करके एक डेस्क बेंच की कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब ये जो आपने डिजाइनर को डिजाइनिंग का पैसा पे किया फॉर ओनली दिस टाइप ऑफ डेस्क बेंच, है, ये मटेरियल तो था नहीं, लेबर भी नहीं था। लेबर या एम्प्लॉय कॉस्ट क्यों नहीं था? वो जो डिजाइनर था वो आपका एम्प्लॉय नहीं था, इसलिए लेबर कॉस्ट है या मैन पावर कॉस्ट नहीं। वो प्रोफेशनल पर्सन है जिसको आपने काम दिया और करवा के लिए, इसलिए वो कहां जाएगा? एक्सपेंसेस। और ये इजीली कोरिलेट हो सकता है कि इतना खर्चा एक डेस्क बेंच पे लगा, यदि इजीली कोरिलेट हो सकता है तो वो हुआ डायरेक्ट एक्सपेंस। दूसरा एक और एग्जांपल, मोबाइल हैंडसेट, या ये ले लेते हैं, चलो रिमोट। ये रिमोट है, ये हमारी कंपनी बनाती है, ऐसा समझो रिमोट। इसके पार्ट्स हम बनाते हैं, लेकिन इसको असेंबल करना पड़ता है, जिन्हें जोड़ने को बोलते हैं असेंबली। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में असेंबली यानी कंपोनेंट पार्ट्स बना के उसको जोड़ना, इज कॉल्ड असेंबली। ये सब वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो इसको असेंबल करने का, फिर इसको पैक करने का और लेबल लगाने का, इतना काम हमने किसी आउटसाइड एजेंसी को दे दिया, यानी आउटसोर्स किया। क्या किया? आउटसोर्स किया। और उनको बोला वी विल पे यू ₹200 पर पीस फॉर डूइंग व्हाट? असेंबली, पैकिंग, लेबलिंग। प्रोड्यूस हम करके देंगे, इतना आपने करके हमको दे देना है। अभी जो हम ₹200 आउटसाइड एजेंसी को देंगे, इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग चार्जेस। आउटसोर्स किया ना आपने काम, अब उसको जो हम 200 दे रहे हैं, माई कंपनी इज पेइंग 200 पर पीस फॉर गेटिंग इट असेंबल्ड, पैक्ड एंड लेबल्ड। वो यहां डालूं क्या? मैं ₹200 की बात कर रहा हूं, जो उसको दिया आउटसाइड एजेंसी को। मटेरियल है क्या? नहीं। हाँ, उसको कुछ पैकिंग मटेरियल लगेगा, उसका प्रॉब्लम है, उसकी कॉस्ट है, मेरी नहीं। मैंने ₹200 दिए, उसकी बात कर रहा हूं मैं। मेरे लिए ये ₹200 मटेरियल है क्या? नहीं। एम्प्लॉय कॉस्ट हुई क्या? वो एम्प्लॉय है क्या? नहीं, वो दूसरी कंपनी है, इंडिपेंडेंट कंपनी। फिर कहां जाएगा वो? यहां दो में नहीं गया तो कहां जाएगा? एक्सपेंस में। एंड कैन आई कोरिलेट 200 कॉस्ट इज इनकर्ड पर पीस वेरी इजीली? तो ये कहां जाएगा? यानी मैंने एक एग्जांपल दिया, एक डिजाइनिंग का दिया, एक आउटसोर्सिंग चार्जेस का दिया फॉर गेटिंग इट असेंबल्ड एंड पैक्ड। एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं, रॉयल्टी का। समझो ये प्रोडक्ट का जो डिजाइन है ये पेटेंटेड है किसी और के नाम पे। कोई एक व्यक्ति है जिसने इसको डिजाइन किया और उसने पेटेंट करा लिया अंडर कॉपीराइट्स, पेटेंट एंड कॉपीराइट्स एक्ट। तो वो उसकी बन गई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मुझे वो डिजाइन पसंद आया, तो मैंने उस व्यक्ति को कांटेक्ट किया कि यार वो डिजाइन आपने बनाया है, आपके नाम पे है लीगली, लेकिन आपको तो कुछ काम का नहीं है, मेरी कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है, सो कैन आई यूज योर डिजाइन टू प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट एंड सेल इट इन द मार्केट लीगली? तो बोले ठीक है। तो उसने एक लीगल एग्रीमेंट किया मेरे साथ, एंड दैट पर्सन हैज अलाउड मी मींस कंपनी टू लीगली यूज दैट डिजाइन एंड प्रोड्यूस एंड सेल द गुड्स। लेकिन उसके बदले में मैं कुछ दूंगा ना। आपने मर्केंटाइल लॉ पढ़ा ना, समथिंग, राइट, कंसिडरेशन, राइट, समथिंग इन रिटर्न। तो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज करने के बदले में मैं जो दूंगा उसको पैसा, उसको बोलते हैं हम रॉयल्टी।
उसका टेक्निकल नाम क्या है? रॉयल्टी. When you use somebody's intellectual property and to compensate that, what you pay is called royalty. तो मैंने उसको रॉयल्टी प्रॉमिस की that we will pay you royalty 100 rupees per piece produced using your design. अब 100 rupees मेरे लिए क्या हो गया? खर्चा यानी कॉस्ट. इज इट मटेरियल? इज इट लेबर? लेबर नहीं है, वो एम्प्लॉय नहीं है मेरा, मैं उसकी एक असेट यूज कर रहा हूं, लेकिन वो इंटेंजिबल असेट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको लीगली यूज करने का खर्चा लग रहा है, वो असेट यूज करने का वो है एक्सपेंस, और आई थिंक इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस. 100 पर पीस इजीली कोरिलेट हो सकता है. ऐसा सोच सकते हैं. हाँ, ये सब्जेक्ट लॉजिकल है. मैंने जितने बताए उतने ही एग्जाम्पल दुनिया में है नहीं. आपने सोचना क्या है, whether that cost has one-to-one relationship with the cost object, then it is direct. If it is common cost, it doesn't have one-to-one relation, then it is indirect cost. Now, the total of these three, direct material plus direct labor plus direct expense, is called prime cost. And a prime cost is another name for all direct costs together. Prime cost means direct material plus direct labor plus direct expense together. All direct cost together is called prime cost. अब ये लेते indirect material plus indirect labor plus indirect expense together is called overheads. Overheads. वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. वो चैप्टर में यदि सो गए आप तो खटाक से ऊपर से निकल जाता है. कौन सा? ओवरहेड्स. So all indirect cost together is called overheads. All direct cost together for manufacturing activity is called prime cost. And prime cost plus overheads is your total cost. So total cost is direct cost plus indirect cost, or total cost is prime cost plus overheads. Now, in practical life, three elements of cost are known as practical life में. हाँ, मेजॉरिटी बुक्स में या मेजॉरिटी फैकल्टी आपको बोलेगी that three elements of cost are material, labor and overheads. I repeat, technically and theoretically this is correct. Three elements of cost are material, labor and expenses. But practically speaking, people say three elements of cost are material, labor and overheads. इसी चीज को ऐसे बुलाया जाता है प्रैक्टिकली. जैसे अपना स्कूल में जो रजिस्टर्ड नाम रहता है वो अलग रहता है, लेकिन दोस्त लोग कुछ और ही नाम से बुलाते हैं. ऐसा होता है, राइट? तो वैसे व्यक्ति एक ही है, रजिस्टर्ड नाम अलग. ये रजिस्टर्ड नाम है किताब में, ये स्कूल में लिखा हुआ नाम है, बुलाते ऐसा है. लेकिन थ्री एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ये जो थ्री एलिमेंट्स लिखे ना वो ऐसे बुलाते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स. तो कभी कभी लोग बोलते हैं सर हमने तो ऐसा पढ़ा ना, आपने ऐसा पढ़ा दिया. अब इसको कोरिलेट करता कि इसको ऐसा क्यों बुलाते हैं. ध्यान देना, प्रैक्टिकली यही बुलाएंगे हम, लेकिन पढ़ने के लिए एक्चुअली लोग सिर्फ बुलाते मटेरियल कॉस्ट. लेकिन वो जब सिर्फ वर्ड बोलते हैं ना मटेरियल कॉस्ट, तो इसका मतलब होता है ये वाला डायरेक्ट मटेरियल. यानी बोलना रहता है डायरेक्ट मटेरियल, बोलते सिर्फ क्या? मटेरियल. आप बोलेंगे फिर इनडायरेक्ट मटेरियल कहां गया? ये कहां गया? इधर. तो लोग बुलाते समय सिर्फ मटेरियल कॉस्ट बोलते, समझना क्या? डायरेक्ट मटेरियल. बुलाते समय लोग लेबर कॉस्ट बोलते सिर्फ वर्ड, वो ये है, वो डायरेक्ट लेबर है. पूरा वर्ड बोलने की जगह लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, मीनिंग है उसका मेनली डायरेक्ट लेबर. और ये आइटम आता है बहुत कम. कौन सा? डायरेक्ट एक्सपेंस. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको हार्डली 5% टाइम आपको ये आइटम मिलेगा, 95% नहीं मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जांपल ही बहुत कम है. मैंने शायद एक सेंटेंस बोला था, मेजॉरिटी एक्सपेंसेस टेंड्स टू बी इनडायरेक्ट. तो लोगों ने क्या किया, इसका काम कम पड़ता है, इसको ड्रॉप कर दिया.
जो नाम बुलाने में डिफिकल्ट रहता तो अपन उसका शॉर्ट फॉर्म नहीं क्या बना देते? वैसे ही अभी आपका नाम यदि ज्ञानेश्वर है, ज्ञानेश्वर, और आप यूएस में काम कर रहे होंगे तो आपको वहां के लोग ज्ञानेश्वर बुला पाएंगे क्या? तो वो आपका नाम बदल ही देंगे। तो ये आइटम बहुत कम आता है, तो लोगों ने क्या बोला, तू बाहर हो जा, इसको भूल गए, और इसको सब इनडायरेक्ट कॉस्ट को मिला के ये, तो लोगों ने प्रैक्टिकल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बना दिए मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। और इसीलिए जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पढ़ेंगे, तो जनरली 95% टाइम कॉस्ट शीट में हम लिखेंगे मटेरियल प्लस लेबर इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। अब आप समझो क्या हो गया, बुला रहे हैं मटेरियल लेबर, वो है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, और ये आइटम है नहीं, तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर हो गया प्राइम कॉस्ट, इसलिए वहां बुलाते हैं मटेरियल प्लस लेबर इज प्राइम कॉस्ट, और फिर प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड ओवरहेड्स, तो टोटल कॉस्ट। तो लोग बोलते हैं ऐसी टोटल कॉस्ट आती है, दिस टू इज प्राइम कॉस्ट प्लस दिस ओवरहेड्स इज टोटल कॉस्ट, एंड देयरफॉर थ्री एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इज मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स प्रैक्टिकली। लेकिन मैं यहां से नहीं पढ़ा सकता था आपको, क्योंकि ये परफेक्ट है, उसका ये कन्वर्टेड वर्जन है। और अब आपको यहां से मैं पहले मॉड्यूल का इंट्रोडक्शन करा देता हूं, मुझे अच्छी बात याद आ गई। ये पहले मॉड्यूल में मेरे वाले क्लासरूम नोट्स में, अच्छा एक बात और बतानी रह गई, आई हैव कवर्ड ऑल द चैप्टर्स विच आर कवर्ड इन द इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल इन अवर क्लासरूम नोट्स, बट एट सम प्लेसेस सीक्वेंस may change, so don't worry about it, the sequence may change slightly at some places, but everything is covered. Secondly, I will be teaching in the same sequence, यानी वॉल्यूम 1 में का चैप्टर 1 में पहले क्लास में पढ़ाऊंगा, फिर चैप्टर 2, so you always know what next I am going to teach for those students who want to do pre preparation, यानी जो लोग पढ़ के आना चाहें। अब इस वॉल्यूम 1 में 6 चैप्टर है, और इस वॉल्यूम को मैंने नाम दिया है, आपको वहां से पढ़ने में नहीं मिलेगा, प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड्स। हाँ, ध्यान देना, वॉल्यूम 1 का नाम क्या रखा है मैंने, प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड्स। अब उसका सीक्रेट आपको अभी पता चल गया, प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड्स, ये मैंने नाम दिया, कुछ सोच समझ के दिया, क्योंकि इस वॉल्यूम में जो चैप्टर कवर हो रहे हैं वो बता दूं आपको। पहला चैप्टर तो बेसिक कॉन्सेप्ट से जो हमने चालू किया, क्योंकि बेसिक्स ही पता नहीं चलेंगे तो आगे की कुछ समझ में बात नहीं आएगी, तो इसमें पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, दूसरा चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट, और आपके ध्यान में आ गया मटेरियल कॉस्ट दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर लेबर कॉस्ट या एम्प्लॉय कॉस्ट, मैं सिर्फ वॉल्यूम 1 की बात कर रहा हूं, लेबर कॉस्ट ऑब्लिक एम्प्लॉय कॉस्ट यानी मैन पावर कॉस्ट, चौथा चैप्टर ये ओवरहेड्स। अरे ये जो पढ़ाया ना, इसका मैग्नीफाइड वर्जन हर एक चैप्टर में पढ़ना है। इससे एक बात और समझ लेना है, मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जो जो चीजों पे टच करूंगा वो सब आपको बाद में डिटेल में अलग अलग चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज व्हाट इट इज। यानी पहले बोलते हैं ना पहली पहली मुलाकात, जैसे आपकी पहले दिन कुछ दोस्तों से मुलाकात होगी, पहली पहली मुलाकात सिर्फ नाम पता चला, फिर धीरे धीरे जब मुलाकातें बढ़ती जाएगी, उनके घर तक पहुंच जाएंगे, फिर उनके घर पे जो कुत्ते बिल्ली उनसे भी पहचान हो जाएगी, वो पहले भोंकते थे आपके ऊपर, अब दो मिलाते, यानी डिटेल में पहचान होगी, ऐसा धीरे धीरे करके होगा ना, वैसे ही हम कर रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सब समझ में आ गया, समझना, बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं टच करा दूंगा, सबका पहला इंट्रोडक्शन, और बाद में डिटेल्ड इंट्रोडक्शन एक एक चैप्टर में। तो ये सब एक एक चैप्टर है, मटेरियल कॉस्ट वाला, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स, फिर फिफ्थ चैप्टर एक अभी समझेगा नहीं, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, इसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलते हैं, वो इसी का एक रूप है, किसी का, ओवरहेड्स का एक कन्वर्टेड रूप है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और ये सब कॉस्ट को हम एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में यदि लिखें तो टोटल कॉस्ट मिलेगी, भाई मैं मटेरियल कॉस्ट लिखूं, लेबर, ओवरहेड्स और टोटल लूं तो कॉस्ट मिलेगी, टोटल कॉस्ट। उसका जो प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन को हम कहते हैं कॉस्ट शीट, राइट, अ शीट इन विच कॉस्ट इज कैलकुलेटेड। तो कॉस्ट शीट इज जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन, लाइक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यू प्रेजेंट इट इन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट फॉर्मेट, करेक्ट।
ये जो आपने अकाउंटिंग में पढ़ा कि हाउ द फाइनेंशियल डेटा इज प्रेजेंटेड, तो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो. ट्रेडिंग P&L balance sheet is a way of presentation of information. Similarly, all the costs are presented in a particular format, and that format of presentation is called cost sheet. और यही 6 चैप्टर अपने नोट्स में वॉल्यूम 1 में, यानी देखा जाए तो मैंने वॉल्यूम 1 आज कवर कर लिया. पहली मुलाकात दोस्तों कवर कर लिया ने. पहली मुलाकात, अरे ये बाद में डिटेल में मुलाकात कौन करेगा? घर जाने के बाद कुत्ते ने भौंकना नहीं चाहिए, दो मिलाते हुए आना चाहिए, यानी डिटेल में पहचान होगी. उसको टाइम लगेगा दोस्त, इसको टाइम लगेगा. ये पहला वॉल्यूम ही बहुत टाइम खाने वाला है. मैं कोरिलेट करके दे रहा हूं. ऐसे मैंने दूसरे और तीसरे वॉल्यूम का भी कुछ नाम रखा है. यहां क्लियर हो गया? एक थोड़ा सा और टच कर देता हूं, कल आगे कहां बढ़ेंगे हम. वैसे वो डिटेल में आने वाला है ओवरहेड्स टॉपिक में, लेकिन ये जो ओवरहेड्स है इसके 3 पार्ट होते हैं. समझो किसके? ओवरहेड्स आर डिवाइडेड. ओवरहेड्स इज इनडायरेक्ट कॉस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज फर्दर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. और उसके पहले बता दो, प्राइम कॉस्ट लिखने के लिए इतना ही है, बट प्राइम कॉस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अप टू प्रोडक्शन स्टेज, यानी वो है प्राइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. बस ये प्रोडक्शन तक का ही खर्चा है. हाँ, कौन सा? प्राइम कॉस्ट. उसके आगे का नहीं है इसमें, प्राइम कॉस्ट में नहीं. मैं आता हूं आगे. ये ओवरहेड्स के 3 पार्ट करते हैं. ओवरहेड्स गेट सब डिवाइडेड इन 3 मेजर पार्ट्स. वन इज कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स. डोंट वरी, ये सब ज्यादा डिटेल में कहां है? इधर. अभी पहली मुलाकात. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. और तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. एक्चुअली 2 हैं लेकिन इसको हम क्लब करते हैं जनरली. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. ओवरहेड्स के 3 पार्ट. पहली बात, ओवरहेड्स का मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये भूलना नहीं. इफ दैट इनडायरेक्ट कॉस्ट इज इनकर्ड, यहां एक वर्ड यूज किया मैंने, कॉस्ट इज इनकर्ड. कॉस्ट इनकर्ड का मतलब होता है खर्चा लगा, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट इज इनकर्ड. जैसे ही आपने कोचिंग क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन किया और फीस पे की, कॉस्ट इज इनकर्ड. कॉस्ट ऑफ बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इज इनकर्ड. अब मैं बोल रहा हूं ओवरहेड्स मींस इनडायरेक्ट कॉस्ट, बट इफ दैट कॉस्ट इज इनकर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इज फैक्ट्री ओवरहेड्स. नाम में ही मतलब है ना दोस्तों. ओवरहेड्स यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट. किसका? फैक्ट्री में लगा हुआ. फैक्ट्री में यानी प्रोडक्शन में लगा हुआ. प्रोडक्शन करते समय जो इनडायरेक्ट खर्चा लगता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसको हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स. लॉजिकली पढ़ो, रट के क्या करेंगे? इनडायरेक्ट खर्चा, ओवरहेड्स यानी इनडायरेक्ट खर्चा, काय में लगा? फैक्ट्री में यानी प्रोडक्शन में. और इसीलिए इसके और भी नाम है, बता ही दूं आज ही. किसके? फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम. प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब सेम. हाँ, एक दोस्त के मल्टीपल नाम. फैक्ट्री ओवरहेड्स को क्या बुलाते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड्स. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. मीनिंग कहां चेंज हुआ? बोलो वाला मुझे. वर्ड चेंज हुए, मतलब कहां चेंज हुआ? फैक्ट्री ओवरहेड्स इज सेम एज प्रोडक्शन ओवरहेड्स, सेम एज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. कोई भी नाम आए पता हो ना क्या चीज, एक ही चीज है वो. और एक वर्ड है वर्क्स ओवरहेड्स. वर्क्स ओवरहेड्स. वर्क्स है, वर्क नहीं सिर्फ वर्क्स. हाँ बोलेंगे ये थोड़ा सा नया नाम है. कौन सा? वर्क्स. दोस्तों प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाते वर्क्स मैनेजर. ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का वर्ड है. मैं बार बार एक बात बोलूंगा, अभी आपका एंगल चेंज करना है पढ़ने का, क्योंकि क्या होगा, ये साला शब्द ही पहली बार देखा, वर्क्स. ऐसा नहीं. वर्क्स मैनेजर यानी प्रोडक्शन मैनेजर. मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि मैंने एक कोर्स जो पास किया ICWA, ध्यान देना. अभी इसका फुल फॉर्म था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड, ये वाला वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो था वो.
इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि कॉस्टिंग का काम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज्यादा लगता है, सॉरी। तो वर्क नहीं, वर्क्स, वर्क्स का मतलब होता है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन मैनेजर के यदि विजिटिंग कार्ड पे आपको क्या मिल सकता है, वर्क्स मैनेजर, समझ जाने का, प्रोडक्शन मैनेजर। तो वर्क्स ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ऑल मींस वन एंड द सेम। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स यानी ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस का जो काम होता है उसमें जो खर्चा लगता है, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, लाइट वगैरह जो भी, और उनके स्टाफ की सैलरी। एडमिनिस्ट्रेशन आपको समझता है व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे भाई इस एकेडमी का एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, राइट। ऐसा समझो क्लासरूम इज फैक्ट्री, जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन आपकी इंक्वायरी वगैरह हैंडल करने के लिए ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, उसका खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। और मार्केटिंग है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जनरली कंबाइन कर देते लोग, है दो अलग अलग। टेक्निकली देखना सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फर्क है। सेलिंग ओवरहेड्स और सेलिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट द डिमांड, ध्यान देना। और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड टू सैटिस्फाई द डिमांड। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, आपके चेहरे ने बताया कि ये ओवरहेड्स गया, चेहरे से पता चलता है कि ये ओवरहेड्स गया। कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट द डिमांड इज सेलिंग कॉस्ट, यानी सेलिंग ओवरहेड्स। कॉस्ट इनकर्ड टू सैटिस्फाई द डिमांड इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। एग्जांपल, हमने नया मोबाइल लॉन्च किया, यानी कंपनी है मेरी, नया मोबाइल लॉन्च किया मार्केट में। आपको कैसे पता चलेगा नया लॉन्च हुआ? एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पास ही पड़ा रहेगा वो। तो फिर पेपर में, न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स, जो भी, ये सब मैं करूंगा आप तक पहुंचाने के लिए, उसके फीचर्स प्लस साथ में कोई एक्टर एक्ट्रेस रखनी पड़ेंगी कुछ तो भी, कि उसके बगैर चलता ही नहीं, उनके भी पैसे दूंगा, शूटिंग करवाऊंगा, जो भी। ये सब खर्चा मैं कर रहा हूं टू जनरेट द डिमांड, कि आपके मन में इच्छा पैदा हो प्रोडक्ट खरीदने की, डिमांड जनरेट करा रहा हूं मैं। ये सब खर्चा जो किया वो था सेलिंग ओवरहेड्स। अब डिमांड जनरेट हो गई, समझो आपके मन में इच्छा हो गई कि ये मोबाइल खरीदना है, मुझे अच्छा लग रहा है ये पीस। अब ये डिमांड जनरेट हुई तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पैसे इधर आने चाहिए और मोबाइल वहां तक जाना चाहिए। इसके लिए भी तो कुछ खर्चा होता है। अरे वो होलसेलर, रिटेलर के चैनल से उधर तक जाएगा कि नहीं प्रोडक्ट, वो डिमांड को सेटिस्फाई करना है। तो जब कैरेज आउटवर्ड वगैरह बोलते हैं, होलसेलर का, डीलर्स का, रिटेलर्स का कमीशन बोलते हैं, जिससे वो प्रोडक्ट वहां तक पहुंचेगा, पैकिंग करा के पहुंचाना पड़ेगा, वो खर्चे को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब फर्क ध्यान में आया? जनरेटिंग द डिमांड इज सेलिंग, सेटिस्फाइंग द डिमांड इज डिस्ट्रीब्यूशन। एक एग्जांपल और देता हूं, फिर आज यहां स्टॉप लेंगे। एक डेप्रीसिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट, डेप्रीसिएशन इज एक्सपेंसेस, वैसे भी वो, और डेप्रीसिएशन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रीसिएशन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी ओवरहेड्स। डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। डेप्रीसिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस कंप्यूटर, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। डेप्रीसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। वैसे रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, रेंट ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, इतना ही आसान है दोस्तों। लॉजिकली पढ़ोगे तो आसान है, नहीं तो आप बोलेंगे लिस्ट दे दो हमको पूरे फैक्ट्री ओवरहेड्स के। अरे अच्छा, वही इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा फैक्ट्री में भी लगता है मशीन चलाने के लिए, तो पावर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल कंज्यूम्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो ऑफिस में नहीं लगता कि इलेक्ट्रिसिटी, वहां भी लगती, वो एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स डिपार्टमेंट को नहीं लगती क्या? तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी ऐसा नहीं बोल सकता। अरे भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल किसका, वो किस काम के लिए लगा, खर्चा किस काम के लिए लगा। इनडायरेक्ट खर्चा ओवरहेड्स, और वो खर्चा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए लगा तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, वही इनडायरेक्ट खर्चा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी के लिए लगा तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को ऑफिस ओवरहेड्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑफिस ओवरहेड्स। और वही खर्चा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी के लिए लगा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। और दोस्तों फिर ये सब डायरेक्ट कॉस्ट के आइटम और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट के ये
क्लासिफिकेशन यानी ओवरहेड्स के, ये सबको हम जब जोड़ते हैं सो वी गेट कॉस्ट शीट। कल मैं कॉस्ट शीट जस्ट एक दिखाऊंगा ब्रीफ में, क्योंकि वो अलग से एक चैप्टर है, एंड देन विल गो अहेड टुवर्ड्स मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, ये भी डेफिनेशन पे जाना है अपने को, राइट? आज के लिए इतना काफी है, विल स्टॉप हियर फॉर द डे।